session moderator. I welcome you all to the today's session, which will be on India's 12 income taxes and non-corporate entities financials. I would like to invite CA Arun Suraf, who is a practicing chartered accountant having 18 years of experience related to various industries. He is currently serving as the chairperson of Business Development and MSME Committee of FIA. And he always be ready for any kind of professional help related to the curriculum. So Aaron will be addressing this session about FIA and also about the session. So over to you, Aaron. Thank you, C. Mansi ji. Yeah. Namaskar to all participants, speakers, and moderator as well. Welcome you all on FIA platform. FIA, Federation of Indian Economic Affairs, एक organization है that is established by professional and for the professionals. Objective is to empower individuals and organizations in the field of finance and economics. It is a platform where members can connect, exchange ideas, enhance their skills through seminar, workshops, webinars. And today, for knowledge and expansion and knowledge enhancement, we are doing webinar on two topics basically. One is Ind AS 12 and one is non-corporate entity financials by CA Mangal Singh ji and CA Uttam Modi ji. In actually Ind AS 12, actually there is a confusion on calculation always. कि कैसे क्या डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है, क्या लायबिलिटीज बनाना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है उसको। तो आई बिलीव मंगल सिंह जी विल हेल्प अस कि सारे कंसेप्ट एकदम से क्लियर करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फाइनेंशियल्स में अभी कंफ्यूजन है कि मैंडेटरी है या नहीं है, 1 अप्रैल 25 से क्या होने वाला है। तो उत्तम मोदी जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि क्या करना है, फाइनली उसके एक्सेल फॉर्मेट्स क्या है। तो आई थिंक कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजफुल होने वाला है ये सेशन। तो आई वुड रिक्वेस्ट मानसी टू प्लीज इनवाइट मंगल सिंह जी। Thank you so much, Arun, for this brief session introduction. And we'll definitely having a good knowledgeable session for our learners and interactors. So now I would like to invite CA Mangal Singh. CA Mangal Singh is a distinguished chartered accountant, fellow member of ICI, and one of the designated partner of a reputed firm. With rich experience since 2015, he brings the expertise in taxation, statutory audits, and advisory services. He has led a significant audit engagement with public sector giants like BSNL and LIC. And beyond his auditing work, CA Mangal Singh has an exceptional command over tribunal matters and litigation under tax laws. His passion for knowledge sharing and makes him a regular speaker across forums. And we are truly fortunate to have him on guiding session on India's 12 for us today. So Mangal will be having a session, first session on India's 12 income taxes. So over to you, Mangal Singh. Thank you, Mansi ji and Arun Yes. sir, for my introduction. Today we are here assembled for giving a presentation on Ind AS 12. मानसी जी आप एक बार शेयरिंग अलाउ कर दीजिए प्लीज, सो दैट आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन। Yes, sure. My screen is visible for all, Mansi ji, others participant? No, sir. Yes, your No. screen is visible. Sir, today myself Mangal Singh, today I am taking a seminar on Ind AS 12 income tax. Income tax, sir, this standard is very simple, sir. राइट नाउ क्या इन मार्केट में लोगों का कैलकुलेशन एस्पेक्ट्स में काफी मिस्टेक्स होती हैं, बट इफ यू विल थिंक फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एसेट्स, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एनी एसेट्स विच आर कमिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी क्या इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट।
जनरली पीपल क्या देख रहे हैं कि बुक्स में हाउ फिगर्स आर कमिंग, क्या उनकी फेस वैल्यू है, क्या उनकी बुक वैल्यू है, एंड करस्पॉन्डिंगली कंप्यूटेशंस में क्या फिगर आ रहा है। सर हियर वी विल कवर वन बाय वन ऑल द थिंग्स सर। बेसिकली इन आवर इंड एस 12 here we are covering what is the objectivity of ind AS 12, what is the scope of ind AS 12, how ind AS 12 is aligned with our prudence concept, how it's aligned with our matching concept, how it was aligned with our prudence concept. We will understand from that aspect. If we understand with the basic understanding कि जो हमारा इंड एस 12 है हमारे बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, अगर उस रूप से हम लोग समझेंगे सर इजिली वी कैन अंडरस्टैंड, और विथ हेल्प ऑफ द एग्जांपल वी कैन इजिली कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स, and what are the principle of accounting for deferred tax, what are the definitions, what are, how we are calculating current tax. With the help of example we will understand here what is the deferred tax, we will understand with the help of example how we are recognizing deferred tax and deferred tax liability as on reporting date. Every year we are measuring the deferred tax liability and assets. Some of the special cases we will cover here and some of the special provision we will cover, and what are the disclosure while finalizing the financial statement, what are the disclosure required as per Ind AS 12, and last में what are the basic difference as per accounting standard 22 और Ind AS 12 में क्या difference है वो हम cover करके चलेंगे सर. First of all, introduction sir. This approach of the standard is a fundamental different from existing approach prescribing accounting standard 22. सर आप लोग सबको पता होगा accounting standard 22 जो हमारा हुआ करता था that is basically अभी भी वर्तमान में है, जो अदर्स देन लिस्टेड कंपनियों पे जो अप्लीकेबल है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ही है, बट उससे फंडामेंटली ये डिफरेंस है. बेसिकली जो हमारा इंड एस 12 बात करता है बैलेंस शीट अप्रोच से. थ्रू बैलेंस शीट अप्रोच ईच लाइन ऑफ आइटम ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी वी विल कंपेयर विद द टैक्सेबिलिटी, फ्यूचर में उसकी क्या कंसिक्वेंस आएंगे. बट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 था वो सर प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड अप्रोच होता था. हाउएवर द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट आर सेम बट फंडामेंटली चीजें डिफरेंस हैं सर. These standards prescribe the accounting treatment for current tax, future tax consequence arising from the future recovery of the carrying amount of the assets. We will understand with the help of example A that will be covered in the next slide. Second, future settlement of carrying amount of the liability. We will understand with the help of example. And what is the current period transaction of event that are recognized. Sir, before to start, here I am taking one practical example, sir. There is a one company, for example, A Limited. A Limited purchased a plant for rupees 10 lakhs, for example, as on 1/4/2024. टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल मान के चलिए 25% है एज एन एसएलएम बेसिस मेथड पे, एंड अकाउंट्स डेप्रिसिएशन जो है हमारा कंपनी एक्ट जो अलाउ करता है दैट इज 20% एट एसएलएम. द टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 25%. सपोज दैट ये हम केस दे रहे हैं और एनालाइज करने के लिए बात कर रहे हैं सर. सर सबसे पहले एज ऑन रिपोर्टिंग डेट जिस दिन हमने एसेट्स परचेज किया एज ऑन 1/4/2024 को व्हाट एंट्री वी आर पासिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, वी आर पासिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पीपीई अकाउंट डेबिट फॉर रुपीज 10 lakhs टू बैंक. दिस विल बी रिकॉर्ड एज ऑन 31 मार्च 2025 को हम क्या एंट्री पास करेंगे सर, वी विल पास आवर डिप्रिसिएशन एंट्री एज पर इंड एस 16 जो हमारा डील करता है उसके हिसाब से हम इसको डिप्रिसिएट करेंगे. डिप्रिसिएशन अकाउंट टू पीपीई 2 lakhs सर हो गया. अगर हम सर एक एक्सट्रैक्ट बनाए बैलेंस शीट का अपने माइंड में, तो एक्सट्रैक्ट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आ रही है सर हमारे पीपीई की 8 lakhs आ रही है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे डिप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ रही है 2 लाख रुपीज आ रही है. अब सर ये सोचिए कि जो पीपीई की वैल्यू आ रही है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हमारे बैलेंस शीट में जो पीपीई की वैल्यू आ रही है 8 लाख, 8 लाख का मतलब क्या है, 8 लाख का मतलब ये है कि फ्यूचर में भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट इतने की कंपनी को कम से कम तो फ्लो होगी ही होगी. व्हाट दिस मींस इकोनॉमिक बेनिफिट वैल्यू फ्लो होगी मतलब क्या सर, समझने की यहाँ पे आवश्यकता है कि जो एसेट्स हमारा बुक्स में आ रहा है टू दी एक्सटेंड कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम सेल और रेवेन्यू और प्रोफेशनल रिसिप्ट भी उसी के अगेंस्ट बुक करेंगे. उसके यूजर से हम अपनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं हमारे पीएल में एज एन रेवेन्यू, एज एन सेल, एज एन टर्नओवर बढ़ रहा होगा. और जब हम रिकॉर्ड करते हैं पीपीई को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को देखते ही हुए हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे सब्जेक्ट टू इंपायरमेंट. इंड एस 32 कहता है सब्जेक्ट टू इंपायरमेंट. वो हम फर्दर फिर देखेंगे कि इस एसेट से क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है कि नहीं, उसके फ्यूचर कैश फ्लो निकालेंगे. वो पार्ट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा सर. अभी यहां पे हमारा क्या कवर हो गया सर एस्पेक्ट कि हमारे बुक्स में कितने की वैल्यू आ गई पीपी 8 लाख. अब सर यहां पे समझने वाली ये बात है सर कि एज ऑन 31 मार्च 2025 हमारे बुक्स में वैल्यू कितनी है
8 लाख की हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, यानी कि गवर्नमेंट सरकार मोदी जी हमसे टैक्स कितने पे लेंगे? 8 लाख रुपए पे लेंगे सर। टैक्स रेट हमारा क्या है? 25% है। अब साइमल्टेनियसली यही एस्पेक्ट को आप इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एंगल से सोचिए सर। जो एसेट्स हमारी 10 लाख की थी, उस पर डिप्रिसिएशन तो इनकम टैक्स 25% ही अलाउ कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एंगल से अगर वो डिप्रिशिएट किया जाए अपने बुक्स में, तो उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितनी होगी? 7,50,000। इन आवर बुक्स एसेट्स की वैल्यू क्या है? 8 लाख। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से चला जाए तो हमें कितनी और डिडक्टिबल अमाउंट फ्यूचर में यूज कर सकते हैं उस एसेट से? 7.5 लाख रुपए। तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस है सर। फ्यूचर में हम टैक्स किस पे दे रहे हैं? 8 लाख रुपीज पे हमारे बुक्स के हिसाब से, और हमारे इनकम टैक्स के एस्पेक्ट से 7,50,000। दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिडक्टिबल डिफरेंस आ रहा है, वो फ्यूचर टैक्सेबिलिटी में कहीं ना कहीं अराइज करेगा सर। तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस दे रहा है सर। अब यहां पे ये देखना होगा सर, फ्यूचर हमारा कितना है? फ्यूचर इनकम कितनी है? 8 लाख है। इनकम टैक्स के हिसाब से 7,50,000 है। स्टिल हमारी टैक्सेबिलिटी ज्यादा हो रही है। इट मींस दैट फ्यूचर में हमें टैक्स ज्यादा लगेगा सर। आज तक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या होती थी सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में? नॉर्मल हम कैसे डेफर्ड टैक्स बनाते थे? कंप्यूटेशन बनाया, पीबीटी निकाला, एड बैक किया डिप्रिसिएशन, अब तक हमने क्या चार्ज किया है, और माइनस किया सेक्शन 32 का इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन। जो डिफरेंस आया 2 लाख और 2.5 लाख का, 50 लाख पे हमने डेफर्ड टैक्स प्रोविजंस बना दिया। उस पर्सपेक्टिव से हमें यहां वर्किंग नहीं करनी है इंडेस में। इंडेस में हमें किस प्रैक्टिस करनी है सर? हमें एसेट्स की और लायबिलिटी की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देखनी है, उसकी वैल्यू क्या है। हमारे बुक्स में वैल्यू कितनी है? 8 लाख है आफ्टर डिप्रिसिएशन। हमारे इनकम टैक्स अभी कितना और फ्यूचर में अवेलेबल है, जो कि 7,50,000 है। दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट शुड बी डिफाइंड एज एन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और दोनों के डिफरेंस को ही बोला जाता है सर, उसको डिफरेंस को ही बोला जाता है सर दो एस्पेक्ट्स में। अगर टैक्स लग रहा है, दैट शुड बी टैक्स टाइमिंग डिफरेंस और डिडक्टिबल टाइमिंग डिफरेंस। वो डिटेल में मैं कवर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में सर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सर, बुक्स में हियर फिक्स्ड एसेट्स हमारे बुक्स में 1 लाख रुपीज है। एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड हमारा 1 लाख रुपीज है। फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन इज 25,000 एंड एज पर आवर इनकम टैक्स एक्ट 100% डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही अलाउ हो जाती है। जैसे हमारा साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 जो इनकम टैक्स कवर करता है, कहीं कहीं 100% भी होता है, कहीं कहीं 125%, 150% भी डिडक्शन इनकम टैक्स रिकॉर्ड में मिलता है। तो अगर उसको कंपेयर किया जाए सर, इसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो बुक्स में हमारी कितनी है? 75,000 है, बट इन आवर इनकम टैक्स दैट इज नील। तो आप यहां देख रख सकते हैं सर, इमोजी के तौर पर मैंने एक एग्जाम समझाने की कोशिश किया है सर। फर्स्ट सिनेरियो में सेव नाउ, अभी सेव करेंगे तो फ्यूचर टैक्सेबिलिटी विल बी अराइज। द फ्यूचर रिकवरी ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट शुड बी अ टाइमिंग डिफरेंस। अभी सर मैं टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है वो डेफिनेशन बाद में कवर करूंगा। क्या कैरिंग अमाउंट होती है वो मैं बाद में कवर करूंगा। टैक्स बेस क्या होता है मैं बाद में कवर करूंगा। पहले मैं एग्जांपल के तौर पे, जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को भी दिया था कि कंपनी को अगर 10 लाख का एसेट्स खरीदी है, बुक्स में 2 लाख का डिप्रिशिएट कर दिया, और उसकी पीपी की वैल्यू हुई 8 लाख रुपए, और इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन कितना है सर? 2,50,000 है। तो इनकम टैक्स में फ्यूचर में एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट हमारी क्या है? 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को हमारी बुक्स में क्या वैल्यू है एसेट्स की, उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। कितनी है सर? 8 लाख रुपीज है। अब सेकंड एस्पेक्ट इनकम टैक्स एंगल से सोचेंगे सर, कि इनकम टैक्स के एंगल से हमारा अभी फ्यूचर में कितना और डिडक्शन हमें मिलेगा। फर्स्ट ईयर का डिडक्शन 2.5 लाख रुपए तो मिल गया सर, 25% स्टेट लाइन मेथड से इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 के हिसाब से। अभी आने वाले फ्यूचर में 3 साल के डिप्रिसिएशन और मिलेंगे, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, ये फ्यूचर में हमें डिडक्शंस मिलेंगे। 8 लाख जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, और फ्यूचर में हमें कितनी डिडक्शंस मिलेगी। जो हमारे बुक्स में कैरिंग, जो हमारे बुक्स में जो एसेट्स की वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। और फ्यूचर में जो बेनिफिट इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से आएंगे, वो हम उसको बोलते हैं सर टैक्स बेस। दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं, जो हमारी टाइमिंग डिफरेंस आती है सर, उसको बोलते हैं। और ये जो हमारी टाइमिंग डिफरेंस है, ये भी दो तरीके की होती है सर। एक होती है टैक्सेबल, एक होती है डिडक्टेबल। इन केस ऑफ टैक्सेबल के केस में सर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर वाइस वर्सा केस आता है तो इन दैट केस वी विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अभी एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे सर। जैसे कि एग्जांपल ये हमने कवर किया, एग्जांपल 2 सर, ये लायबिलिटी का एग्जांपल है। बोनस पेबल टू द एम्प्लॉय, क्या एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करेंगे? बोनस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट सर
This features settlement of carrying amount of the liability rupees 10,000. That is, as per section 43B of Income Tax Act 1961, any sum which is actually paid by the SEC on or before due date filing of income tax return, इस सिनेरियो में तब अलाउ होता है। लेकिन इनकम टैक्स प्रैक्टिस से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेबिट कर दिया, बट हमारे इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के हिसाब से वो डिसअलाउ होता है। जो टाइमिंग डिफरेंस आता है दैट विल बी क्रिएट एज एन टाइमिंग डिफरेंस। अब प्रीमियरली एक्सपेंस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वी इनकर्ड 25,000 एज एन प्रीमियरली एक्सपेंस। हमने क्या एंट्री पास की सर? प्रीमियरली एक्सपेंस टू बैंक। जो भी पार्टी है, पार्टी यहाँ पे नहीं थी, दैट्स व्हाई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने एंट्री पास कर दिया है। देन दूसरी एंट्री क्या होगी सर? एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू primarily expense. As per income tax, we know that there is a one section 35D. Whatever expense we are incurring 1/5 एक्सपेंस फर्स्ट ईयर और बैलेंस 4/5 में एडजस्टमेंट फ्यूचर ईयर में हमें मिलता है, सब्जेक्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 5% लगाते हुए विच एवर इज लोअर। लेकिन 1/5 अलाउ होता है फर्स्ट ईयर में, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ये एग्जांपल के तौर पे सर, मैं एग्जांपल स्टार्टिंग में क्यों कवर किया? बेसिकली उसका स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है वो समझने के लिए। अब हम लोग समझते हैं सर डिटेल में स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, हाउ टू डू द अकाउंटिंग ऑफ इनकम टैक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? दोनों एस्पेक्ट्स में। करंट टैक्स मींस जो भी ड्यूरिंग द ईयर की जो कंप्यूटेशंस करते वक्त जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, जो हम पे करेंगे, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन डेफर्ड टैक्स। ठीक है सर। सेकंड, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इनकम टैक्स इंक्लूड ऑल द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टैक्सेस which are passed on taxable profit. In our office ITR, we are calculating tax finally after all the adjustment, deductions and exemption. This is called current tax, sir. While accounting of the current tax, we are going to violate the concept of prudence and accrual. अब कैसे सर करंट टैक्स के प्रोविजन में हम वायलेट करते हैं प्रूडेंस एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट को? सिर्फ अगर करंट टैक्स हम प्रोविजंस करें तो ये कुछ वायलेशंस होते हैं। इन वायलेशंस को रोकने के लिए हमारा इंड AS 12 आया कि आप ये वायलेट मत करिए। कहीं ना कहीं हम प्रोविजंस जो इनकम टैक्स का कर रहे हैं वो प्रॉपर वे से कर नहीं रहे हैं। रीजन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? फ्यूचर में कुछ ऐसी टैक्स कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं जिन पे हमें टैक्सेबिलिटी भी हो सकती है और उसका एडवांटेज हमें फ्यूचर एडवांस में मिल सकता है, और कभी कभी इन फ्यूचर उसकी टैक्सेबिलिटी हमें पे करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड। तो इसलिए इंड AS 12 आता है। इंड AS 12 जैसे आता है सर, इंड AS 12 का कॉन्सेप्ट आता है डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन, वो हमारे प्रूडेंस को और हमारे एक्रूवल कॉन्सेप्ट को हेल्प करता है जिससे कि वायलेशन ना हो पाए वाइल क्रिएटिंग प्रोविजन ऑफ डेफर्ड टैक्स। और सर डेफर्ड टैक्स जो है ना सर, डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन ये कुशन की तरह काम करता है। जो हम ब्लॉक प्रॉफिट अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ शेयर होल्डर, डेफर्ड टैक्स इज ए प्ले लाइक एन कुशन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे कुशन का रोल करता है सर? यहां समझने वाली चीज है सर। सपोज दैट हमारा जो भी प्रॉफिट आ रहा है, हमने करंट टैक्स का प्रोविजन कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे आइटम हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं, कुछ ऐसी लायबिलिटियां हैं जो कि फ्यूचर की लायबिलिटी पे हमें टैक्सेबिलिटी देनी पड़ सकती है या अभी हमें एडवांटेज मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया कि 8 लाख रुपए का जैसे हमारे पीपीई की वैल्यू थी, लेकिन हमें गवर्नमेंट ज्यादा डिडक्शंस दे रही है। फर्स्ट ईयर ही हमें सपोज दैट 125% डिडक्शंस दे दी। फ्यूचर में तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन करंट में डिडक्शंस मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। तो उस केस में अगर हम करंट टैक्स का प्रोविजन करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर्स की लायबिलिटी और फ्यूचर्स के डिडक्टेबल और फ्यूचर के जो कॉस्ट ऑफ एक्शंस हैं, जो हमारे प्रोविजंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम पीपी जो कैरिंग अमाउंट हमारी आ रही है और जो टैक्स बेस आ रही है, उसके जो डिफरेंसेस हैं अगर हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो वायलेशन हो जाएगा प्रूडेंस एंड एक्रूवल का। हम इसको जब इसकी वर्किंग करके एक अमाउंट क्वांटिफाई करके इसका हम जब प्रोविजंस डालते हैं डेफर्ड टैक्स आइदर एसेट्स आइदर लायबिलिटी, तो कुशन की तरह कैसे काम करता है सर? हमारा जो प्रॉफिट का फिगर है लेस हो जाता है फर्दर अगर फ्यूचर में लायबिलिटी बनेगी तो। अगर एसेट्स बनेगा तो एडबैक हो जाता है सर। तो जो उसको लेट करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है दैट इज आवर एक्चुअल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर। इसलिए डेफर्ड टैक्स हमारा कुशन की तरह हेल्प करता है सर, जो कि हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को एज वेल एज एक्रूवल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए उसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, परचेज ऑफ फ्री रिसर्च फॉर पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35(1)(2)(a ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 allowed depreciation at the rate 150% in the period of
tax liability is decreased. Sir, in the period of tax liability is decreased. Obvious सी बात है सर, हमने मान लीजिए 1,000 रुपए का एसेट्स परचेस किया, लेकिन हमारा कंपनी एक्ट उसको 10% ही डिप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में वो डिप्रिसिएशन में 150% अलाउ हो रहा है। तो इन द पीरियड ऑफ करंट टैक्स लाइबिलिटी हमारी 100% डिक्रीज हो जाएगी, बट इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टैक्स लाइबिलिटी विल बी इंक्रीज। रीजन क्या है, वाई? Because all the deductions are claimed in the first year, sir. All the deductions, what are the deductions are coming, we are claiming in the first year. जो भी एसेट्स की इकोनॉमिक बेनिफिट थी सर, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना किया, कंपनी एक्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन लेस करके उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल दी, लेकिन इनकम टैक्स में उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट तो जीरो हो गई, जीरो जीरो नहीं माइनस में चली गई, क्योंकि 150% डिप्रिसिएशन अलाउ कर दिया। तो जो हमारा कैरिंग अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में पीपी आ रहा है और साइमल्टेनियसली जो इनकम टैक्स में आ रहा है वो जीरो हो जा रहा है सर। तो फ्यूचर में उसकी हमें tax liability higher than हो सकती है in a comparison of first year. When we have make a comparison of profit and loss account year by year basis, there is a change in a profit and loss account after tax is not systematic to bring the fulfillment कि जो हमारा टैक्स है वो सिस्टमेटिक हो, जो करंट टैक्स की प्रोविजंस है विथ इंक्लूड ऑफ प्रोविजन ऑफ डेफर्ड टैक्स, दोनों के प्रोविजंस को लेते हुए हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिविटी फुलफिल होती है सर। फर्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेकंड वन इज एक्रूअल, third is the prudence concept. With the help of deferred tax accounting adjustment entry, we make profit loss or after a tax is systematically, and जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे स्टेक्स होल्डर हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कंपनी की एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है, एग्जैक्ट लॉस क्या है, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉस शुड बिकम सिस्टमेटिकली आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोविजन ऑफ deferred tax assets as well as liability. Deferred tax actually not pay but effect in the current tax, hence it's called as a current liability की definitions में कवर करते हैं। वाइस वर्सा if liability होगी, वाइस वर्सा अगर assets होगा तो current assets सर। To bring the fulfillment of objectivity of matching concept and accrual concept and prudent concepts, matching concept means income should be matched with expense. The principle is a very important for a correct determination of net profit. According to the principle in determining the net profit from the business operation, all the costs which are applicable to the revenue for a period should be charged against the revenue. That is tax consequence. That is tax consequence जो फ्यूचर में उसका बेनिफिट या उसका लॉस हमें होगा, उसका हम करंट ईयर में ही उसका मैचिंग रिकॉग्नाइज करेंगे सर। सिंपल सिंपल सोचने वाली बात है सर। अगर हम एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने बुक्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हाँ ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा फ्यूचर में, तो साइमल्टेनियसली उसके एक्सपेंस, साइमल्टेनियसली उसकी फ्यूचर लायबिलिटी क्या आएगी वो भी हमें रिकॉग्नाइज करके चलना पड़ेगा एज ऑन रिपोर्टिंग पीरियड। एक्रूअल कॉन्सेप्ट को कैसे ये सर फुलफिल करता है, डेफर्ड टैक्स प्रोविजन अगर हम बुक्स में डालते हैं टू अ सर्टेन एट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस for an accounting period and show the true financial positions of the enterprise at the end of accounting period. All the expenses, all the incomes relating to the accounting period are recorded, whether actual cash has been paid or received or not. Actual concept of often described as a matching concept. Suppose we get 100% deduction of under income tax records, then we have to not pay tax in a current year, but we have to pay in a future. सर फ्यूचर में कैसे पे करेंगे वो एग्जांपल के तौर पे मैंने सर समझाया था। जैसे कि इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कंपेयर करनी है एसेट्स की एज वेल एज इनकम टैक्स के एस्पेक्ट से भी बेनिफिट हमें देखनी है कि इनकम टैक्स हमें फ्यूचर में क्या डिडक्शंस देगा। इनकम टैक्स में फ्यूचर तो डिडक्शंस देगा ही नहीं, लेकिन हमारे बुक्स में इकोनॉमिक बेनिफिट आ रही है। सर इसको ऐसे समझिए सर, बहुत बहुत माइंड में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सर 2 मिनट के लिए साइड करिए, इसको इस तरह सोचिए सर। अगर कोई एसेट्स हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट ग्रोथ कंपनी को होगी एज पर इंडिया 16 क्या कहता है, इकोनॉमिक बेनिफिट ग्रोथ होगी तो एसेट्स रिकॉग्नाइज करो। यानी कि आप उसको एज ए टैक्स मान के चलिए। जैसे कि 8 लाख हमने डिप्रेशन की एंट्री पास करने के बाद फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, पीपीई की वैल्यू 8 लाख रुपए रखी, तो 8 लाख की इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कैसे मिलेगी सर? हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू के थ्रू मिलेगी, सेल्स के थ्रू मिलेगी, हमारे टर्नओवर के थ्रू मिलेगी, कहीं ना कहीं उसके थ्रू हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगी सर। तो उसको आप क्या मानिए, आप अपना कैरिंग अमाउंट मान के चलिए और साइमल्टेनियसली आप इनकम टैक्स एंगल से सोचिए कि ये एसेट जो हम 8 लाख की जो हमारी एज ऑन रिपोर्टिंग डेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट हमें इनकम टैक्स प्रारूप से कितना मिलेगा। इनकम टैक्स क्या कहता है कि एक ही साल में आप 150% ले लो, तो इनकम टैक्स में तो हमने एक ही साल में जीरो ले लिया ना सर। तो
जीरो हो गया, नेगेटिव में चला गया, तो कैरिंग अमाउंट अगर हम कंपेयर करेंगे, हर ईयर हम डिप्रिसिएशन के हिसाब से चलेंगे, तो प्रॉफिट तो हमें बुक्स में दिखेगा ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू इकोनॉमिक बेनिफिट दिखेगी हर साल, उससे टर्नओवर रियलाइज होगा, उससे सेल्स रिकॉग्नाइज होगा, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट रिकॉग्नाइज होगी, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट करेगी, और उस पर आप टैक्स देते जाएंगे। टैक्स बेस में तो कुछ है ही नहीं टैक्स में, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही आपने ले लिया बेनिफिट, लेकिन फ्यूचर में ऐसा एक समय आएगा कि वो जो एसेट्स की इकोनॉमिक बेनिफिट आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को हिट कर रही है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया सर। सबसे पहले सर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन पर जाएंगे तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थिंग सर, हमें उसे ग्रॉस रूट लेवल को समझने की जरूरत है। ये डेफर्ड टैक्स आया क्यों, इंड एस 12 आया क्यों सर। सेकंड सर, स्लाइड में हम कवर करेंगे, टू ब्रिंग द फुलफिलमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, accrual concept and prudence concept, the concept of prudence or conservatism. According to this principle, all the anticipated loss, sir मैं repeat कर रहा हूं, all the anticipated loss should be recorded in the books of account, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. The principle of conservatism should be used very cautionally, otherwise it will have two effects. What are the two effects, sir? First, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट एज कंपेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट। क्यों होगा सर एक्चुअल, क्यों लोअर क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि हमने प्रोविजंस प्रॉपर दिया ही नहीं सर, ओवर स्टेट करके हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, हमें डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट करना होगा, नहीं तो शेयर होल्डर के पास क्या थॉट प्रोसेस जाएगा, जो उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो प्रॉफिट हम रिटेन अर्निंग में रखें वो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होगा सर, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स एक तरह से कुशन की तरह हेल्प करता है, तो आपके स्टेटमेंट को सिस्टमेटिकली बनाता है। बैलेंस शीट विल बी डिस्क्लोज अंडर स्टेट एसेट्स एंड ओवर स्टेट्स ऑफ लायबिलिटी इन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू। अगर हम डेफर्ड टैक्स फॉलो कर लेंगे तो ये दोनों की दोनों कमियां खत्म हो जाएंगी। क्या खत्म हो जाएंगी सर? जो डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट, दैट विल बी प्रॉपर डिस्क्लोज हो जाएगा, लोअर नहीं होगा, सिस्टमेटिकली आ जाएगा, और जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कर लीजिए या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कर लीजिए, वो प्रॉपरली अंडरस्टेटेड नहीं होगी, वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होगी एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है सर। टू ब्रिंग द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सपोज वी हैव टू पे करंट टैक्स ड्यू to 100% advance or by higher deductions or exemption used at the stage of profit, as stage of profit is high, but not pay tax or pay less tax amount. In a future situation, it is reversed because we have to pay higher tax in a future year, even though our profit is less in a comparison of past year, because we have already claimed 100% deduction in an earlier year, that is current year. So providing the deferred tax profit is reduced, then we have to be not pay so much dividend to the shareholder in the current year. तो सर डेफर्ड टैक्स क्या है? डेफर्ड टैक्स मैकेनिज्म है, कुशन है, प्रॉफिट में लगाता है, वो फिर प्रॉफिट को फिल्टर करके सिस्टमेटिक प्रॉफिट निकालता है, और जो हमारे शेयर होल्डर है उनको रियल प्रॉफिट दिखती है। सो सम ऑफ प्रॉफिट इज जस्ट रिटेन in a form of dividend tax, adjusting the entry because the sum of amount used to pay tax in the future year. इसलिए हम प्रोविजंस करके चलते हैं करंट टैक्स के साथ साथ डेफर्ड टैक्स एसेट्स का भी और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, इन जो भी वाइस वर्सा जो भी केसेस आएंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर की कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं जो हमें टैक्स पे करना पड़ सकता है, इसलिए हम उसका प्रोविजंस मेंटेन करके चलते हैं। Major differences between accounting standard 12 and Ind AS accounting standard 22 and Ind AS 12. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा 22 है, इट इज बेस्ड ऑन इनकम टैक्स अप्रोच सर, इनकम एंड एक्सपेंसेस अप्रोच, प्रॉफिट एंड लॉस ओरिएंटेड अप्रोच होता है। और जो हमारा इंड एस 12 है, इट इज बेस्ड ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर करेक्ट में बोला जाए बैलेंस शीट अप्रोच। हाउएवर अंडरलाइन द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, दैट मीन्स whatever the answer we get from AS 22 get more or less as per the Ind AS 12, but Ind AS 12 is a very vast, more detailed and covered many aspects which is not covered in Ind AS 12. For example, जैसे indexation benefit cover नहीं है हमारे AS 22 में, हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन कवर नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में कवर नहीं है, हमारा इंड AS उसको कवर करके चलता है। डिटेल डिफरेंस we will cover in the last slide sir. Principle of accounting, how we are doing the accounting of deferred tax. So recognition of deferred tax is based on a principle, what an assets or liability is recognized, that is obvious that the entity will be recovered or settled from the carrying amount of the assets and liability. Sir यहाँ carrying amount क्या है? What is the carrying amount? Carrying amount sir simple assets के perspective में देखा जाए
तो बुक्स में जो आपकी वैल्यू आ रही है, बुक्स में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी सॉरी, जो भी बैलेंस शीट में आपकी पीपी की वैल्यू आ रही है, वो आपकी कैरिंग अमाउंट है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट, अगर इम्पेयरमेंट है तो। ठीक है सर। वाइस वर्सा फॉर लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, फॉर एसेट्स के केस में पीपीई यूज्ड और सेल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, गुडविल एक्सेट्रा। एग्जांपल फॉर अ लायबिलिटी, that the entity will be settled, bonus, provision on creditors payable, gratuity provisions or warranty provisions, provision for diminution of investment, etc. If as a result of such recovery on a settlement of carrying amount, future tax paid is affected, Ind AS 12 required in order to ensure the matching principle, the entity should recognize a deferred tax liability or assets when the assets or liability are recognized. Deferred tax is a matching mechanism accounting tool, sir. अब एग्जांपल के तौर पे समझेंगे सर। MGL प्राइवेट लिमिटेड इज having a building for worth rupees 2 lakh rupees, current tax rate is 20%, and the entity is deciding to revalue the assets of fair value for rupees 5 lakhs. With the help of this example, we can understand the sum of the definition. कुछ definitions हमें understand करेंगे। क्या definitions है सर? Taxable profit क्या होता है, accounting profit क्या होता है, ये हमारे Ind AS 12 में सारी चीजें, abbreviations, ये सारे हमारे वर्ड्स आएंगे। तो हम पहले वहां जाने से पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर उसके डेफिनेशंस को समझ लेंगे। टैक्स बेस क्या होता है, क्या होता है, कैरिंग अमाउंट क्या होता है, तो एग्जांपल से हम लोग समझ जाएंगे सर। बाय डूइंग सो द एंटिटी इज रिकॉग्नाइजिंग इन इट्स फ्यूचर इट्स लाइकली टू एबल टू सेल द एसेट्स इज फॉर रुपीज 5 lakhs। तो कैरिंग अमाउंट एसेट्स की क्या हो जाएगी इन बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख रुपीज हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी फेयर वैल्यू क्या डिसाइड कर रहा है, 5 लाख रुपीज। इट इज ऑल्सो लाइकली टू हैव टू पे टैक्स लेटर ऑन देम, इट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन इट सेम मैनर। देयरफॉर डेफर्ड टैक्स क्या होगा सर, स्लाइड 39 में हम समझेंगे सर। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स क्या होगा सर, सिंपल। अभी एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कब एसेट्स क्रिएट करेंगे, कब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, वो अभी यहाँ नहीं समझेंगे सर। सिंपली हम अपने, देखिए सर, अगर याद करने के पर्सपेक्टिव से पूछिएगा या बच्चों के लेने में रट्टा लगाने के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा तो सिंपल है सर। आप ये सोचिए बुक्स में क्या हो रहा है, बुक्स में क्या वाउचर हम पास कर रहे हैं और इनकम टैक्स में क्या वाउचर पास कर रहे हैं, दोनों वाउचर का कंपैरिजन कर लीजिए। पर इनकम टैक्स में कोई वाउचर तो बनता नहीं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनता नहीं है, तो यहाँ पे वो फंडामेंटल मतलब वो हमारा जो टोटका है वो फेल हो जाता है। तो बेटर होगा हम अंडरस्टैंड करके चलें दोनों के बेनिफिट्स को। इनकम टैक्स में है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, कोई एसेट्स कोई लायबिलिटी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, दोनों का कंपैरिजन करने को ही हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। तो यहाँ पे सर जो हमारी बुक वैल्यू है एसेट्स की 5 लाख रुपीज है। इकोनॉमिक बेनिफिट कितनी मिलेगी फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में कितना हम पैसा कमाएंगे, 5 लाख रुपए जो हमारी रेवेन्यू फ्लो होगी कंपनी को, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्नओवर आएगा, जो सेल्स आएगा, जो ग्रॉस रिसिप्ट आएगी, वो 5 लाख हमारा एसेट्स को यूज करके ही आएगी ना सर। तो हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कितनी मिल रही है, 5 लाख रुपीज। अब आ जाइए सर अपना इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से। इनकम टैक्स प्रैक्टिस क्या है सर, 2 लाख की वैल्यू है, 2 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू है, तो इनकम टैक्स प्रैक्टिस से हम 2 लाख की वैल्यू मान के, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा 3 लाख रुपीज इज इन करंट ईयर में हम रिकॉग्नाइज कर देंगे डेफर्ड टैक्स, और जो भी रेट होगा रेट से मल्टीप्लाई करने पे फर्दर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। और सर रेट क्या लेंगे, रेट जो भी प्रिवेलिंग होगी, जो भी इनेक्टमेंट होगा हमारा इनकम टैक्स एक्ट, वो रेट लेंगे। अब सर यहाँ क्वेश्चन आती है कि सर इंड एस तो फ्यूचर वैल्यू की बात करता है, सर इंड एस तो फ्यूचर के रेट्स की बात करता है, तो यहाँ पे आप क्यों मंगल जी आप ये क्यों बता रहे हैं कि हम इनकम टैक्स का करंट का रेट ले लेंगे। सर करंट का रेट इसलिए लेंगे, अगर हम एस्टिमेट बेस में अगर हम पिछले 5 साल या 6 साल के इनकम टैक्स के रेट को लेते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है भी, अगर इनकम टैक्स ने डिफाइन भी कर दिया है कि कंपनी का नेक्स्ट ईयर में ये टैक्स लायबिलिटी होगी, फिर उसके बाद ये लायबिलिटी ये रेट पे टैक्स लगेगा, फिर ये रेट पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी, जो भी रेट्स हैं वो रेट को आप तो ले आओगे, लेकिन उसको फिर डिस्काउंटेड तो करना पड़ेगा ना, प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा ना। तो ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग रेट है, जो राइट नाउ जो इनेक्टमेंट है एक्ट का, वही रेट आप उठा लीजिएगा, तो बेटर आपको फेयर वैल्यू देगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स की एंड लायबिलिटी के सर। अब डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी rupees 5 lakhs book value of assets and liabilities, sir. What is the tax base? 2 lakh rupees. The value of assets and liability as per the income tax record, it's a 2 lakhs, sir. Others definition, what is the tax expense? Tax expense include current tax as well as deferred tax.
करंट टैक्स एज वेल एज डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स चाहे एसेट्स भी हो सकता है, चाहे लायबिलिटी भी हो सकता है, प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स किस पे निकलता है सर? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम और प्रॉफिट। टैक्सेबल इनकम एंड प्रॉफिट क्या होता है? इनकम एज पर द एक्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जो हमारी इनकम एज पर द इनकम टैक्स लॉ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो इनकम आ रही है, दैट शुड बी आवर टैक्सेबल इनकम और प्रॉफिट। व्हाट इज अकाउंटिंग इनकम प्रॉफिट? अकाउंटिंग इनकम प्रॉफिट हमारी क्या होती है सर? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन शॉर्ट बोला जाए पीबीटी। करंट टैक्स, वी विल एलोबरेट व्हाट इज द करंट टैक्स। टैक्स ऑन अ टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। टैक्सेबल प्रॉफिट जो हमारा करंट ईयर का टैक्स एज पर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, दैट शुड बी आवर करंट टैक्स। डिमांड एज इनकम टैक्स फॉर अर्लियर इट शुड बी आल्सो एडेड इन अ करंट टैक्स। कोई पेनल्टी है 234 की, इंटरेस्ट की वर्किंग है ए बी सी, वो भी हमारा टैक्स करंट टैक्स प्रोविजंस में है। कोई पेनल्टीज है, कोई ऑर्डर्स हैं, वो भी हमारा सर करंट टैक्स में कवर करके चलेंगे व्हाइल क्रिएटिंग प्रोविजन। Rate of tax should be as per the law enacted or substantially enacted law by the reporting date. Whether the circular or announcement effects are taken while deciding the tax rate, yes, we have to see that one also. Measurement of current tax. Whether current tax and advance tax can be set up, yes, as per the Ind AS we can set up, sir. और हमारा सेक्शन इनकम टैक्स में भी एक सेक्शन है, वहां भी सर हमें अलाउ करता है, अगर सेम एक्ट का अगर हमारा टैक्सेस हैं तो वी कैन सेट ऑफ। Current tax liability assets for the current and prior period shall be measured at the amount expected to be paid or to recovered from the taxation authority using the tax rate and tax law have been enacted and or subsequently enacted by the end of the reporting period, subject to the following conditions. क्या legally enforceable rights है, partially intended to settle net basis है, then we have to be, हम उसको नेट ऑफ करके चलेंगे सर, सेट ऑफ करके चलेंगे एसेट्स और लायबिलिटी को। एज पर इन इंडिया देखा जाए, इनकम टैक्स एक्ट हमारा अलाउ करता है सर सेटअप के लिए। साइमल्टेनियसली सेटअप कैन बी अलाउड इन ए केस फॉर डेफर्ड टैक्स एंड लायबिलिटी भी सर हम साइमल्टेनियसली सेटअप कर सकते हैं। टैक्स बेस फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स बेस, टैक्स बेस मीन्स इनकम टैक्स पीपुल के परस्पेक्टिव से हम ये सोचेंगे, ये जो एसेट्स, ये जो कंपनी अपने बुक्स में जो एसेट्स रिकॉर्ड की है, जिसपे वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, इनकम टैक्स के बेसिस पे क्या बेनिफिट अवेलेबल है। मैं सर हमेशा इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करूंगा, एसेट्स के पर्सपेक्टिव से भी, लायबिलिटी के भी कॉन्सेप्ट से भी, लायबिलिटी पे हो गई कि नहीं हो गई है, दोनों के पर्सपेक्टिव से हम अगर ये विजुलाइज करके चलेंगे ना, अपना विजुलाइजेशन सर इकोनॉमिक बेनिफिट के कंटेक्स्ट से अगर सोच के चलेंगे, तो हमारा डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बहुत ईजी है सर। द टैक्स बेस ऑफ एन एसेट्स एंड लायबिलिटी इज द अमाउंट अट्रीब्यूटेड to that assets or liability for the purpose tax base for an assets, for the liability items are not recognized as an assets and liabilities। किसी केस में सर टैक्स बेस जीरो भी हो सकता है, और कभी कभी कुछ ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं कि जो हमारा कैरी अमाउंट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है एज पर द कंपनी एक्ट, और जो टैक्स बेस जो फ्यूचर में बेनिफिट अवेलेबल है इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से, दोनों कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, कभी कभी दोनों इक्वल्स भी हो सकते हैं। वो केस टू केस में आएगा सर, वी विल डिस्कस लेटर। Tax base of an assets when economic benefit are taxable related to expense, for example depreciation on fixed assets, related to income, interest taxable on a receipt basis। सर यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है सो दैट आपके माइंड में प्रॉपरली डेफिनेशंस आ जाए टैक्स बेस की एसेट्स के पर्सपेक्टिव में। अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो नहीं हो रही है कंपनी को, when economic benefits are not taxable means carrying amount of बुक्स ऑफ अकाउंट का जो एसेट्स की वैल्यू है और जो टैक्स बेस की है दोनों बराबर हो जाएंगी, तो कोई भी टैक्स की कंसिक्वेंस नहीं आएगी। सेकंड एग्जांपल के तौर पे और समझेंगे सर, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस। ये कुछ एग्जांपल है सर। टैक्स बेस ऑफ एन एसेट्स इज अमाउंट दैट विल बी डिडक्टिबल फॉर द पर्पस ऑफ अगेंस्ट एनी टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट दैट विल बी फ्लो टू एन एंटिटी व्हेन इट्स रिकवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स। सर यहाँ कॉस्ट ऑफ ब्लॉक क्या है? 1 लाख रुपीज। डिप्रिसिएशन रेट क्या है? एज पर द कंपनी एक्ट इज 15%। एज पर द इनकम टैक्स रेट क्या है? 25%। कैलकुलेट टैक्स बेस रेट। सर कैलकुलेट टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट होगा सर? सबसे पहले हम कैरिंग अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। कैरिंग अमाउंट क्या है सर? यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक दिया है, इनकम टैक्स की वैल्यू दी है 1 लाख रुपीज, ठीक है सर, और इनकम टैक्स का रेट है आपका 25%। तो जो एसेट्स की आपकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाई 25% जो इनकम टैक्स का रेट है 25, जो भी आपका 25,000 रुपीज जो भी आएगा सर, वो आपको तो करंट ईयर में एज एन डिडक्शन कंपनी को मिल जाएगी अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो मिल गया।
अब सर एज ऑन रिपोर्टिंग डेट हम ये देखेंगे इस एसेट्स की इकोनॉमिक बेनिफिट कितना और फ्लो होगी कंपनी को, कितनी फ्लो होगी सर? 75,000। 75,000 फ्लो होगी। तो 75,000 जो इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होगी कंपनी को फ्रॉम पीपीई, दैट शुड बी इज ए टैक्स बेस। और कैरिंग अमाउंट हम देख लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में आफ्टर कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन लगाते वक्त, आफ्टर इम्पेयरमेंट लगाते हुए जो वैल्यू आएगी, दोनों का हम कंपैरिजन करके देख लेंगे। कंपैरिजन जो आएगा उसको हम सर टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं सर, उसको हम डिडक्टिबल डिफरेंस बोलते हैं सर। और वो भी डिफरेंस दो तरह के आ सकते हैं, फ्रॉम टैक्स एंगल से भी आ सकता है और डिडक्टिबल एंगल से भी आ सकता है, वाइस वर्सा। उस केस में हम कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। ये और एग्जांपल है सर, वी विल नॉट, विद टाइमिंग हमारे पास बहुत शॉर्ट है, दो सौ डेट एक एक एग्जांपल से हम अपने अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलेंगे। टैक्स बेस फॉर एन एसेट्स रिलेटेड टू इनकम, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट्स इज एन अमाउंट that not taxable when it's recovered the carrying amount of the assets. Assume interest receivable for rupees 10,000 and such interest is a tax on cash basis. Then calculate the tax base. क्या calculate tax base होगा सर? इंटरेस्ट हम बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे सर? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट 10,000 टू द इंटरेस्ट इनकम इज 10,000। तो हमारा टैक्स बेस क्या होगा? टैक्स बेस क्या होगा सर? यहाँ पे हमें ये प्रोस्पेक्टिव से देखना है सर कि बेनिफिट कैसे फ्लो होगी है कंपनी को। When benefit will be flow to the कंपनी को कब फ्लो होगी? इंटरेस्ट रिलाइज इन कैश इज सब्जेक्ट टू टैक्स। जब आपको फ्लो होगी इन रिलाइज होगा तभी वो सब्जेक्ट टू टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से आएगा सर। इसलिए हमें इनकम के एस्पेक्ट से हमें क्या सोचना है सर? व्हेन बेनिफिट विल बी फ्लो टू द एंटिटी, इंटरेस्ट रिलाइज इन द कैश, इट विल बी सब्जेक्ट टू द टैक्स। सेम एक एग्जांपल और तौर पे समझते हैं सर। एज्यूम द इंटरेस्ट रिसीवेबल इज फॉर रुपीज 10,000 and rupees 6,500 will be claimed as a non-taxable and the balance is taxable. Then what will be the tax base? Simply tax base will be upon or 3,500 sir. Tax base of an assets when economic benefit are not taxable. जब economic benefit हमारी taxable नहीं होती है तो उस केस में हमारा CA कैरिंग अमाउंट जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एसेट्स की वैल्यू आ रही है या अदर्स एसेट्स की वैल्यू आ रही है वो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में भी सेम आ रही है और हमारा जो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट इनकम टैक्स एंगल से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो बेनिफिट फ्लो होगी कंपनी को, दोनों बराबर आ गई। उस केस में हम सीए और टीबी दोनों बराबर हो जाती है। उस समय हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई टाइमिंग डिफरेंस ही नहीं बनी सर, कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हुई। डेफर्ड डेटर फॉर रुपीज 1,00,000 रुपीज विल बी रियलाइज द अमाउंट फ्रॉम द डेटर कैलकुलेट टैक्स बेस। इस सिनेरियो में सीए इक्वल टू टीबी। फॉर एग्जाम्पल लोन गिवन फॉर रुपीज 5,000, loan amount realized and calculate the tax base, same CA is equal to TB. If the benefit arising from the assets will not be taxable, the tax base assets is equal to its carrying amount. सर अदर्स एग्जांपल भी हैं, सेम ऐसे सिनेरियोज हैं डिविडेंड के, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखे हैं। एन एंटिटी इज ट्रेड रिसीवेबल फॉर रुपीज, उसमें कुछ बैड डेब्ट्स के प्रोविजंस हैं। फिर कैरिंग अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल 950 है। तो ये सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे हमारे टैक्स बेस और करंट जो करंट कैरिंग अमाउंट जो एसेट्स की जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगी दोनों बराबर हो जाएगी। सर ये एलोबरेटिव एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सर इंड एस के अंदर जो हम डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी निकालते हैं, चाहे एसेट्स की चाहे लायबिलिटी की, वो हम अपने बैलेंस शीट के ईच लाइन ऑफ आइटम को सोचते हुए निकालेंगे। नॉर्मली सर ऑफिस में लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन हाँ ये एज पर इनकम टैक्स है, ये हमारा कंपनी एक्ट में दोनों का डिफरेंस निकाला कैलकुलेट करके दे दिया। नहीं, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 बोलता है। बट इंड एस के प्रोस्पेक्टिव से हमें हर एक बैलेंस शीट के लाइन ऑफ आइटम को देखते हुए और टैक्स बेस के प्रोस्पेक्टिव से कैरिंग अमाउंट तो हमारा बैलेंस शीट में आ ही गया, और टैक्स बेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हुए दोनों का कंपेरिजन करेंगे, वहां से हमारी डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट होगी सर। इन्वेंट्री का सिचुएशन है सर, इन्वेंट्री के सिचुएशन में भी सर हमारा जो हमारा कैरिंग अमाउंट है टैक्स बेस के सेम आएगा सर, वहां भी कोई डिफरेंस एराइज नहीं होगी सर। डिफरेंस एराइज कहाँ कहाँ हो सकती है सर? एक तो पीपीई में हो सकती है सर, लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में प्रोविजंस फॉर ग्रेचुइटी, बोनस, डिमिनिशंस का प्रोविजंस, उस केसेस में हमारी डिफरेंसेस अराइज हो सकती है। इन्वेंट्री के केस में भी सर हमारा अलाउ नहीं होगा, क्योंकि टैक्स बेस फॉर इन्वेंट्री इज इट्स फॉर कैरिंग अमाउंट बाय डिफाइनिंग द टैक्स बेस ऑफ एसेट्स is an amount that will be deductible for the tax purpose against any taxable economic benefit will be flow to the entity, it will recover for the carrying amount of the assets। क्योंकि सर जो
हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम अपने बैलेंस शीट में जो एसेट्स इन्वेंट्री की वैल्यू दिखा रहे हैं, वो इन्वेंट्री की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें रियलाइज होगी इन फ्यूचर। और सेम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से भी आप सोचेंगे तो इस इन्वेंट्री के अगेंस्ट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट अलाउ होगी, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, हेंस द टैक्स बेस इज द सेम। मोर एनालिसिस अंडर डिप्रिसिएबल एसेट। डिप्रिसिएबल एसेट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, डिप्रिसिएबल एसेट्स में ही हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट के सरकमस्टांस बनते हैं सर। Depreciable assets carried as a fair value, but the fair value is not allowed for a charging depreciation for a tax purpose. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सर? Because current tax is a fair value and original cost allowed as per the income tax law less minus जो भी डिप्रिसिएशन, क्योंकि सर इनकम टैक्स हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे चलता है। जो एसेट्स की वैल्यू है, जो भी ग्रॉस की वैल्यू है, उसमें डिप्रिसिएशन हम लेस करते हुए चलेंगे और हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे चलती है। और डिप्रिसिएशन एसेट्स कैरिड एट अ फेयर वैल्यू, बट फेयर वैल्यू इज अलाउड फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन फॉर अ टैक्स, दैट मीन्स कैरिंग अमाउंट इज द सेम, टैक्स बेस का सेम हो जाएगा सर। तो ये सर एक करक्स है सर, ये करक्स को अगर आप याद रखेंगे तो वाइल कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स फॉर डिप्रिसिएबल एसेट्स हम इजिली वो चीज को हम कैलकुलेट कर सकेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स अपना कवर करेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स कवर करता है सर इंड एस 107 109, जो फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के जो आइटम आते हैं, उन केसेस में क्या सिनेरियो बनेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी की। फॉर फाइनेंशियल एसेट कैरिड एट अ फेयर वैल्यू, व्हेन अ fair value gain is not taxed and the fair value loss is disallowed for the tax purpose. For that purpose, the carrying amount is the fair value, but the tax base is the original cost. मैं अगेन बोल रहा हूँ, टैक्स बेस हमारा हिस्टोरिकल बेसिस चलता है, इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट को लेकर चलेंगे। इन द केस ऑफ सर्टेन केसेस एज पर द सेक्शन 214 of definition of capital assets which is considered in a books under long term assets, indexation is allowed. Indexation original cost become the tax base. सर इंडेक्सेशन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट देने के बाद हमारा टैक्स बेस विल बी अराइज। ये कुछ सर्टेन एसेट्स पे जो कि हमारा सेक्शन 2 एंड 14 में जो कवर है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी सर, लायबिलिटी के केस में क्या टैक्स बेस होगा सर? यहाँ पे ठीक हमें रिवर्स वे में सोचने की जरूरत है। जैसा हमने एसेट्स एक्सपेंस के बेसिस में सोचा, और सॉरी एक्सपेंस वर्ड यूज करना गलत है सर, टैक्स बेस जैसे हमने एसेट्स के लिए यूज किया, सेम यहाँ पे लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में भी हमें यूज करना है, वाइस वर्सा। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक्सपेंस द टैक्स बेस ऑफ द लायबिलिटी, इट इज द कैरिंग अमाउंट लेस एनी अमाउंट दैट विल बी डिडक्टिबल फॉर द पर्पज tax purpose in the respect of the liability in a future period, then tax base is equal to CA minus amount deductible in the future. फ्यूचर में क्या हमें अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा सर? फ्यूचर में क्या बेनिफिट हमें मिलेगा? फॉर एग्जांपल सर, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का हमने प्रोविजंस कर दिया बुक्स में सर, 5 लाख रुपए से ग्रेचुटी का प्रोविजंस कर दिया। कैरिंग अमाउंट हमारी ग्रेचुटी की क्या है सर? 5 लाख रुपए आ रही है। प्रोविजन फॉर करंट लायबिलिटी हमारे ग्रेचुटी का फिगर आ रहा है। अब बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव में, सॉरी इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से आ जाइए सर, हमने ग्रेचुटी कितना प्रोविजन डाल दिया? 5 लाख डाल दिया, लेकिन वो एड बैक हो जाएगा सर। क्यों एड बैक हो जाएगा? सेक्शन 47 क्या कहता है, अगर आपका प्रॉपर फंडेड है तो अलाउ होगा, अदरवाइज अगर नॉन फंडेड है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट दैट विल बी अलाउ। तो करंट एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स, कैरिंग अमाउंट तो हमारा आ गया 5 लाख रुपए, लेकिन टैक्स बेस हम कैसे निकालेंगे? जो कैरिंग अमाउंट है, बैलेंस शीट की कैरिंग अमाउंट उठा लेंगे माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर। अमाउंट क्या डिडक्टेबल होगा इन फ्यूचर, दैट अमाउंट विल बी कंसीडर। सेम इनकम रिसीविंग इन एडवांस, द टैक्स बेस ऑफ अ लायबिलिटी, इट्स कैरिंग अमाउंट लेस एनी अमाउंट ऑफ अ रेवेन्यू दैट विल बी नॉट टैक्सेबल अगेंस्ट द आइटम इन फ्यूचर। इस केस में क्या होगा सर? टैक्स बेस इक्वल टू CA कैरिंग अमाउंट, जो हमारी कैरिंग अमाउंट फाइनेंशियल जो हमारी लायबिलिटी की वैल्यू आ रही है सर, माइनस अमाउंट जो कि फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है सर, हम इनकम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बुक्स में, लेकिन वो रियलाइज नहीं होता है, बट इनकम टैक्स कहता है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलेटेशन वी विल टैक्स, जो भी होगा उस पर कंपुटेशन पे हमें टैक्स देकर चलना है। तो वो अमाउंट हमें सेग्रीगेट कर लेंगे जिसपे हमें फ्यूचर में टैक्स नहीं देने की जरूरत पड़े, जब हमें वो रियलाइज हो कैश में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी अभी इंटरेस्ट का कवर किया था पिछली स्लाइड में। टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी एज एन एक्सपेंस, उस केस में कैरिंग अमाउंट डिडक्टिबल इन द फ्यूचर वी विल कंसीडर इट। जैसे फॉर एग्जांपल, बोनस पेबल फॉर ₹15,000 एंड द अमाउंट नॉट पेड ऑन और बिफोर ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, दिस अमाउंट कंसीडर अंडर सेक्शन 43B। द टैक्स बेस क्या होगा सर?
कैरिंग अमाउंट हमने बुक्स में कितना लिया हुआ है, बोनस पेबल लायबिलिटी में 15,000, और हमारा 15,000 हम कंसीडर करके चल रहे हैं इसमें इनकम टैक्स के बेस पे, वो हमें अलाउ नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि जब हम पे करेंगे एट दैट टाइम विल बी अलाउ, तो यहाँ पे टैक्स बेस क्या हो जाएगा सर, जीरो। जीरो होगा तो टाइमिंग डिफरेंस हमारा एराइज होगा। टैक्स बेस ऑफ अ लायबिलिटी एज एन एक्सपेंस, what is the carrying amount deductible in the future? Consider the case of provision for rupees 2 lakhs towards interest payable to the bank. Such expenditure toward the interest is a tax deductible only on the payment of the liability when the interest is actually paid, and being a subject to the section 43B of the Income Tax Act 1961. In such a case, the amount is not paid till the filing of the income tax return. सर इस केस में क्या सिनेरियो बन रहा है सर, यहां भी सर समझने की कोशिश करिए। हमने प्रोविजंस कितना डाल दिया सर बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी कितने की आ गई सर, 2 लाख रुपीज की आ गई, ठीक है सर, लायबिलिटी आ गई। अब आ जाइए इनकम टैक्स के एंगल से। इनकम टैक्स क्या कहता है कि ये लायबिलिटी जो आपने क्रिएट किया मैं तभी अलाउ करूंगा जब आप पे करोगे अंडर सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप पे करोगे जो भी शेड्यूल बैंक की लायबिलिटी है तभी मैं अलाउ करूंगा। तो अभी तक कंपनी ने पे नहीं कर रखा है सर, कंपनी ने क्या नहीं कर रखा है, पे नहीं कर रखा है। तो कैरिंग अमाउंट हमारे एसेट्स सॉरी लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख रुपीज है, और हमारा टैक्स बेस में कितना है, टैक्स बेस में उसने पे ही नहीं किया, डेट शुड बी कंसीडर एज जीरो। अभी ऊपर मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया था, 15,000 माइनस 15,000, मतलब लायबिलिटी जो कैरिंग अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में आ रही है लायबिलिटी की, और जो हम टैक्स बेस में उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि डेट लायबिलिटी शुड बी तभी अलाउ होगी जब वो पे होगी। तो 15,000 माइनस 15,000 जीरो, जो जीरो है दैट इज टैक्स बेस। सेम फॉर प्रोविजंस इंटरेस्ट के लिए भी, जो हमने बैंक का हमने इंटरेस्ट नहीं पे किया, इस केस में भी हमारा टैक्स बेस क्या होगा, जीरो होगा। टैक्स बेस ऑफ अ लायबिलिटी एज एन इनकम रिसीव इन एडवांस, देन सेम चीज है सर, सीए माइनस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। यहां पे क्या था सर, इस पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या चल रहे थे, यहां पे क्या था, जो अमाउंट हमने पे किया नहीं है हमने प्रोविजंस कर दिया है, जब पे करेंगे तब अलाउ होगा। अब इस पर्सपेक्टिव से अगर हम एसेट्स के इनकम के बेसिस पे बात करें, लायबिलिटी एज एन इनकम रिसीव इन एडवांस, उस केस में हम क्या करेंगे, जो कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस निकालते वक्त, कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए सर, रेंट रिसीव इन एडवांस फॉर रुपीज 10,000 ऑलरेडी टैक्स ऑन a receipt basis, the amount will be not taxed again in the future। क्या एंट्री पास हो रहा है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस, ठीक है सर। सेम एग्जांपल से क्या होगा, above example if we followed accrual concept then CA इक्वल टू TB, जो हमारी कैरिंग अमाउंट है सेम हो जाएगी, टैक्स बेस हो जाएगी सर। अदर एग्जांपल भी है सर, current liability includes accrued fines, penalties and carrying amount for rupees 10,000, then fine and penalty will be not taxable for the tax purpose, then TB tax base क्या होगा, CA carrying amount minus amount deductible in the future। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं सर, मैं थोड़ा सा स्पीडली कवर करूंगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है। करेक्ट क्या है, आप करेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स ऑफ टैक्स बेस सर, ये समझने के लिए है सर, रिप्लेस द वाउचर ऑफ अकाउंट्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाउचर। अकाउंटिंग में सर कोई सच हम वाउचर नहीं बनाते, बट ये लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है एज एन एक्ट। आप जाइएगा इंड AS 12 में तो ऐसी चीजें कुछ लिखी हुई नहीं है सर, इनकम टैक्स में ऐसी कोई चीजें लिखी हुई नहीं है सर। करेक्ट क्या है सर, एसेट्स के प्रोस्पेक्टिव से एंड लायबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से, एक्सपेंस टीबी इज एन एसेट्स विच इज डिडक्टेबल फॉर द पर्पज, ठीक है सर। इनकम के पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे, टीबी जो टैक्स बेस होगा इज एन एसेट्स विच इज नॉट टैक्सेबल। सेम वाइस वर्सा फॉर लायबिलिटी, एक्सपेंस के केस में टीबी इक्वल टू सीए कैरिंग अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलना उचित नहीं है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी, ठीक है सर, माइनस अमाउंट डिडक्टिबल इन फ्यूचर। सेम फॉर इनकम, जो कैरिंग अमाउंट इनकम की आ रही है हमारा लायबिलिटी हेड में आ रही है सर, माइनस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन द फ्यूचर। ये सर समझने के लिए, याद करने के लिए, अगर ये हम लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो इन ऑल द केसेस वी विल कैलकुलेट 100% करेक्ट टैक्स बेस। टैक्स बेस निकालने में लोगों को प्रॉब्लम आती है सर, बस क्या है सर, जो अकाउंटिंग फंडामेंटल है, जो अकाउंट्स में जो हमने बुक्स में जो एंट्रियां पास कर रखी हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से हमें टैक्स बेस के भी पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहा है तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करते वक्त हमारे एसेट्स की क्या पोजीशंस है और लायबिलिटी की क्या पोजीशंस है, दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए।
सीए माइनस टीबी, उस बेस पे हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी आ जाएगी। अब सर मैंने अभी तक ये नहीं डिस्कस किया आपसे, सीए माइनस कैरिंग अमाउंट माइनस टीबी करने के बाद हमारा एग्जैक्टली वो आता क्या है, अगर प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, माइनस में क्या होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर के चलेंगे। मेन यहाँ पे सर अभी तक हमने स्लाइड्स में हमने यही समझा है कि हमारा करंट एसेट्स कैरिंग अमाउंट क्या है और टैक्स बेस क्या है। Example, current liability includes accrued expense, which is carrying amount of rupees 500. The related expense will be deductible for a purpose on a cash basis. What's the tax base? Tax base is a accrued expense is a nil. CA minus amount deductible in the future. Same दूसरा एग्जांपल समझते हैं सर. Current liability includes accrued expense with a carrying amount rupees 100. The related expense has already been deducted for a tax purpose. What is the tax base? The tax base for accrued expense is rupees 100. कैसे सर? कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टिबल इन फ्यूचर, दैट इज 100 माइनस 0। यहां पे आप लोग की सर अंडरस्टैंडिंग में समझता हूं कि आप लोग क्लियर हो जाएगी, हो चुकी होगी, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट एंड व्हाट इज टैक्स बेस। Item not recognized in assets and liability. Some of the items may not recognize in assets and liability but still have a tax raise. For example, preliminary expense. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था सर, MGL Limited incurred a research cost of rupees 10,000. The amount is charged in profit and loss as per Ind AS 38 of intangible asset. The tax purpose for the deductions is permitted only after satisfying the certain conditions. The carrying amount is a nil as no assets is recognized. What is the tax base? The deductible amount in a future is 10,000 will be the tax base sir. ये एक हमारा स्पेशल केस है सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का। की आइटम इन सिनेरियो में क्या होता है हमारा, सम ऑफ द आइटम मे नॉट रिकॉग्नाइज एसेट एंड लायबिलिटी, लेकिन टैक्स बेस हमारा आ जाएगा। ऐसे कुछ आइटम्स हैं। अब यही सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में कवर नहीं होती हैं। ये इसीलिए हम बोलते हैं सर इंडिया से हमारा थोड़ा मोर डिटेल में है और सारे ट्रांजेक्शंस को कवर रखा है, क्योंकि ये बैलेंस शीट अप्रोच है। बैलेंस शीट्स के हर एक लाइन ऑफ आइटम से हमें सोचते हुए चलना है। एग्जाम्पल, A Limited has been incorporated recently. It's incurred 1 lakh rupees on its incorporation and its amount charged to revenue in the very first accounting period. The taxation law allows the deductions over a period of 5 years. The carrying amount at end of year is nil. Then what is the tax base? Same example के थ्रू हम निकालेंगे सर। टैक्स बेस हमारा क्या हो जाएगा सर, 1 लाख रुपीज। एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं सर। MGL प्राइवेट लिमिटेड इज ए के पास एक बिल्डिंग है जिसकी वर्थ है 2 लाख रुपीज। करंट टैक्स हमारा 20% है। द एंटिटी डिसाइडेड टू रिवैल्यूड द फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 5 lakhs। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड द सम ऑफ द डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बनेंगे सर। अभी तक मैंने हमेशा सीए माइनस टीबी जो कैरिंग अमाउंट है, जो टैक्स बेस के अमाउंट को हमेशा मैं टाइमिंग डिफरेंस बोलता रहा है, लेकिन दैट इज नॉट टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस नॉमेनक्लेचर इज यूजिंग इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 नॉट इन इंड एस। मैं लेकिन स्टिल मैं टाइमिंग डिफरेंस इसलिए बोलते हुए आया था क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को उसकी सही परिभाषा बताई नहीं है। अब समझने वाली बात है सर कि टाइमिंग डिफरेंस जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में हुआ करता था, वो टाइमिंग डिफरेंस हमारे इंड एस में उसकी एब्रिविएशन उसका नॉमेनक्लेचर चेंज है और उसकी थोड़ा डिटेल में हमें एनालिसिस करना है, क्योंकि ये बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से हम चलते हैं। इसलिए टाइमिंग डिफरेंस की जगह हियर वी आर यूजिंग टेम्पोररी डिफरेंस। सीए माइनस टीबी क्या बन के आती है सर, टेम्पोररी डिफरेंस। एंड टेम्पोररी डिफरेंस फर्दर दो तरह के होते हैं सर, टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस एंड डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस कैसे लिख लेंगे सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था सर, 8 लाख का एसेट्स कंपनी एक्ट में है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट 8 लाख मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स में हमें कितना डिडक्शन और फ्यूचर में मिलेगा 7.5 लाख रुपए। तो 8 लाख माइनस 7.5 लाख रुपीज इज अ टेम्पोररी डिफरेंस। लेकिन यहां पे 50,000 हमारा फ्यूचर में टैक्सेबिलिटी बनेगी, तो दैट टेम्पोररी डिफरेंस विल बिकम अ टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस। अगर यही वाइस वर्सा कर देते हैं सर, बुक्स में वैल्यू है 7.5 लाख रुपीज, लेकिन इनकम टैक्स हमें अलाउ करेगा डिडक्शन फ्यूचर में 8 लाख रुपीज, तो यहां पे हम सरप्लस जा रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस में वी विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट, वी विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट्स, क्योंकि आपको इमीडिएट बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है लेकिन भविष्य में नहीं मिलेगा, तो आप एसेट्स क्रिएट करके चलेंगे। उल्टा कर केस बना लीजिए सर, अगर आपका पीपी 8 लाख रुपीज है लेकिन टैक्स बेस आपका 7.5 लाख रुपीज है, तो 50 लाख रुपए का आपको फ्यूचर में टैक्स लगेगा। क्यों फ्यूचर में लगेगा, क्योंकि सर आपके बैलेंस शीट में
एसेट साइड में पीपीई खड़ी रहेगी 8 लाख से, लेकिन वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आते आते वो डिप्रिशिएट होते 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 50,000 बच जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में वो होगी नहीं, वो जीरो हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो 50,000 पे तो इनकम तो देंगे, इनकम जनरेट होगी कंपनी को। अगर वो 50,000 पे कंपनी को इनकम जनरेट होगी तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हमारा रेवेन्यू हिट करेगा, हमारा टर्नओवर हिट करेगा। सर बहुत विजुलाइज करके यहां पे चलने की बात है। हमें हर एक पर्सपेक्टिव्स को यहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट के थ्रू से सोचना है। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो हो रही है कंपनी को तो फ्यूचर में टैक्स लग जाएगा। 50,000 एक्स्ट्रा है वैल्यू एसेट्स की, तो हमारा रेवेन्यू फ्लो होगा कंपनी को, तो 50,000 पे हम टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस बना के चलेंगे, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर यही वाइस वर्सा कर देंगे, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। होप आप लोगों को सर अभी तक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। TD are the carrying difference of the carrying amount of a assets or a liability in the balance sheet and its tax base. Temporary difference is equal to 5 lakhs minus 2 lakh is rupees 3 lakhs. Temporary difference may be either taxable and deductible. मैं यहां पे अभी परिभाषित नहीं कर रहा हूं कि इस केस में क्या होगा, डिडक्टिबिलिटी आएगी या टैक्सिबिलिटी आएगी। अगर सर टैक्सिबिलिटी आएगी, हम आज खड़े हैं एज ऑन 31 मार्च 2025 को खड़े हैं और वहां के पर्सपेक्टिव से हम फ्यूचर को देख रहे हैं, अरे यार फ्यूचर में तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, इस कंपनी की लायबिलिटी बनेगी, तो हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके चलेंगे। अगर ऑन स्पॉट बेनिफिट मिल रहा है, फ्यूचर में हमें लॉस होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट करके चलना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्लियर करके चलनी है सर। डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सर। टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस, which temporary difference that will be result in a taxable amount in determining the taxable profit in a future. These result in a higher taxable profit in the future. Save now, pay later. सेव नाउ पे लेटर, देखिए यहां पे इमोजी मैंने बना के दिखा है, ये खुश हो रहा है अभी, सेव अभी हो गया लेकिन फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा, पे लेटर करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें टेम्पोरली डिफरेंस रिकॉग्नाइज करके चलना पड़ेगा, टैक्सिबिलिटी राइज करने। अगर फ्यूचर में पे करना होगा, रो रहा है ये सर, देखिए आप ये इमोजी रो रहा है मींस लायबिलिटी क्रिएट करके चलनी है हमें, क्योंकि फ्यूचर में हमें टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। सेम फॉर डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस, which temporary difference will be result in amount or deductible in determining the taxable profit or loss for a future period. अभी रो रहा है लेकिन फ्यूचर में आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर फ्यूचर में आपको आनंद की अनुभूति होगी, then in that case we have to create deductible temporary difference, that means deferred tax assets. अभी तक हमने पूरा एक पिक्चर क्लियर कर ली है सर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस, व्हाट इज TTD? TTD, taxable temporary difference, can be arise when save now pay later means burden in the future, hence he can save the taxability in arise in the future. asset size में क्या होता है सर, when the carrying amount is higher than the tax base. liability के लिए वाइस वर्सा कर दीजिए, when a tax base of liability exceeds its a carrying amount. अब temporary difference is equal to CA minus TB, that is maybe either TTD or DTD. कब in what scenario temporary difference will become taxable temporary difference or deductible temporary difference? taxable temporary difference कब बनेगा, pay in future. deductible temporary कब बनेगा सर, save tax in future. when TTD at the multiply कर देंगे टैक्स रेट का, in that scenario deferred tax liability कैलकुलेट होकर आ जाएगी। deferred tax liability are amount of income tax payable in the future in the respect of taxability. tax base is a future deduction. for DTD, deductions temporary difference, tax save in a future. DTD मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, जो भी प्रिवेलिंग इनेक्टेड रेट होगा वो रेट हम उठाएंगे। और सर यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा सर, टैक्स रेट मींस इनकम टैक्स का रेट तो है, लेकिन हम कंप्यूटेशंस बनाने के बाद हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी टैक्सिबिलिटी भी होती है जो कि स्पेशल रेट के दायरे में आती है। इसलिए हम इनकम टैक्स का, जैसे कंपनी के लिए 22% है या 25% है, जो भी हम 115 बैड या BAD फॉर्म 10AC फाइल करके हम उसका लोअर रेट पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स रेट डायरेक्ट नहीं लगाएंगे सर, हमें इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकालना है। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे, जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए 234A, B, C पेनल्टी जो भी है, सारे ब्याज को कवर करते हुए डिवाइड कर देंगे ग्रॉस टोटल, जो भी आपकी टैक्स, सॉरी ग्रॉस नॉट ग्रॉस, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है, मल्टीप्लाई बाई 100, जो रेट निकल के आएगा उस रेट पे हम TTD निकालेंगे
और DTD निकालेंगे, देन आफ्टर हमारा करेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होके आएगी। टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं सर। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट रुपीज 1 लाख रुपीज, द कैरिंग अमाउंट इज 50,000, cumulative depreciation for the purpose of tax is 60,000, tax is 30%. In this situation our tax base is 40,000. 1 lakh minus 60,000. The recovered carrying amount of the entity to earn a taxable income is rupees 50,000, but it will have the benefit of the tax depreciation to the extent of 40,000. In this scenario, we have to pay the income tax rupees 3,000. Being a 30% is a tax rate, multiplied by 10,000, it will be recovered and the carrying amount of the assets. The entity will be recognized deferred tax asset liability for rupees of 10,000, being to pay the tax payable when it's recovered from the carrying amount of the assets. सर ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर पिक्चर फ्लो कर रहा होगा कि हाँ कैसे इंडेक्स 12 में डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशंस चलती हैं, कैसे डेफर्ड टैक्स एसेट निकलता है, कैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलता है। अब सेम एग्जांपल दूसरे तौर पे समझते हैं सर डिडक्टिबिलिटी के बारे में। डिडक्टिबिलिटी टेम्पोररी डिफरेंस एंड एंटिटी recognize their liability for rupees 800 rupees for gratuity and leave encashment expense by creating a provision of gratuity and leave encashments for the tax purpose any amount with the regard to liability for gratuity as well as leave encashment will be not deducted until जब तक आप पे नहीं कर देंगे। टैक्स रेट क्या 25%। यहाँ पे टैक्स बेस क्या होगा सर, टैक्स बेस हमारा जीरो होगा। कैसे टैक्स बेस जीरो होगा सर, सीए माइनस कैरिंग अमाउंट हमारा क्या है बुक्स में, लायबिलिटी की बुक्स में हमारा बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटी का फिगर क्या है सर, ग्रेचुटी का 800 रुपए। 800 माइनस अमाउंट डिडक्टिबिलिटी इन फ्यूचर क्या होगी 800, तो हमारा टैक्स बेस जीरो हो गया। तो डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस क्या होगा, सीए माइनस टीबी दैट इज 800, द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 800 एंड द टैक्स बेस ऑफ इज नील। डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस आ जाएगा 800 रुपए का, और 800 पे हम 25% जो भी इनकम टैक्स का इफेक्टिव रेट होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। डेफर्ड टैक्स की एसेट्स की एंट्री पास करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल बी अर्न सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट इन ए फ्यूचर टू द बेनिफिट फ्रॉम द रिडक्शन इन ए टैक्स पेमेंट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है, जैसा कि अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में पैरा 16 पैरा 17 कहता था, डेफर्ड टैक्स एसेट्स तभी बनाएंगे जब तक फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी ना हो। सर एक चीज आप कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जो एक्यूमुलेटेड जो भी हमारा कंपनी का जो रिटेन जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं, अगर लॉस हमेशा कंटिन्यू हो रहा है और 50% से ज़्यादा हो रहा है लॉस, जो हमारा रिटेन अर्निंग हम अब तक बना रखे हैं, तो उस केस में पॉसिबल नहीं कि कंपनी फ्यूचर में इनकम फ्लो करेगी। कंपनी की तरफ इनकम फ्लो नहीं करेगी क्योंकि कंपनी की इकोनॉमिक बेनिफिट ठीक नहीं है, वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट प्रॉपरली अर्न करेगी। तो इसके उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा सर, हमें ये देखना होगा वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस है कि नहीं कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं कमाएगी। अगर कमाएगी तभी डीटीए बनेगा। लाइबिलिटी के लिए ऐसा बात नहीं है, लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट्स के लिए एसेट्स क्रिएट करते वक्त हमें फ्यूचर्स की वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस देखना होगा कि कंपनी की तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होगा कि नहीं, क्योंकि कंपनी की पोजीशन माइट बी पॉसिबल खराब है, गोइंग कंसर्न इफेक्ट कर रहा है। हमारा एस से सात जो हमारा 670 है, गोइंग कंसर्न इफेक्ट पड़ रहा है। गोइंग कंसर्न के कुछ इंडिकेटर्स हैं, 7 से 8 इंडिकेटर्स हैं। अगर वो अगर इंडिकेशंस आ रहे हैं तो उस केस में हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट नहीं करेंगे सर। Deferred tax liability when it's create DTL at a time of taxability, temporary difference will become in the cases except two cases: initial recognition of goodwill due to the business combination or initial recognition of assets and liability other than the business combination। ये सारे हमारे स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस सर मैं अदर्स मंगल सिंह जी थोड़ा सेशन इंटरप्ट कवर कर लूंगा, क्योंकि हाँ, काफी काफी अदर्स केसेस हैं सर, जैसे थोड़ा बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंक्लूड कर गुडविल्स है। दीजिए मंगल सिंह जी प्लीज। नेक्स्ट स्पीकर का भी वेट कर रहे हैं हम। ओके ओके सर, नहीं सर टिल नाउ सर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा सर। जैसा कि हाँ, बेसिक क्या है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, हाउ वी हैव टू बी क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपका को क्रिएट इमोजी करने वाला का सिनेरियो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझ आ एक्सप्लेन कर गया दिया बड़े है। अच्छे से। बट कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं डेट विल बी कवर इन सेपरेट सेशन सर। काफी ये बड़ा यस स्टैंडर्ड है जैसा कि हमें पता है यस सर। यस यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ सर। अगर इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस देन दे कैन आस्क सर। यस और मैं अपनी पीपीटी भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो डेट तो मोदी जी विल बी शेयर दे पीपीटी भी शेयर कर देंगे मोदी जी। यस यस यस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mangalji, for having this deep understandable session for our participants. Your scenario-based examples might have created a good understanding to our participants.
There are some questions from our participant. One question is there. Is applicability of Ind AS 12 mandatory for all listed companies? Yes. Okay. So yeah, this was the question from our participants. We'll be now moving forward with our next session with CA Uttam Modi on non-corporate entities financials. I want to invite CA Uttam Modi. CA Uttam Modi is a practicing chartered accountant, ex-banker, certified GST practitioner, and designated partner of reputed CA firm. He is having experience of 6 years, and currently he is based out of Jaipur for his practicing firm. And now he is socially and professionally active by mentoring students, and also he is authoring CA books related to CA curriculum. So now he will be delivering our second part of session on non-corporate entities financials. So over to you, Uttam ji. Thank you, Mansi ji. I hope I am audible. Yes. Yes, you are audible. Thank you, Arun sir. Thank you, Federation of Indian Economic Affairs, and thank you, Mansi ji, and all the participants. जैसा कि अपना टॉपिक आज का है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फाइनेंशियल्स, अब मैं अपना सेशन जो है वो शुरू करना चाहूंगा सबसे पहले ही एक सवाल से, क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट्स आए हैं वो मैंडेटरी हैं। अब मेरा सवाल है वो मैंडेटरी है या नहीं है? इफ एनीवन वांट्स टू आंसर प्लीज आंसर, क्योंकि पीपल आर सेइंग मैंडेटरी मैंडेटरी मैंडेटरी। क्या किसी ने गाइडेंस नोट पढ़ के देखा है कि उसमें क्या लिखा है? तो मैं बेसिकली वो फॉर्मेट्स जो हैं उसके अंदर वो यहाँ पर नहीं कवर करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ एफएक्यूज की कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ क्लेरिफिकेशंस, कुछ डिस्क्लोजर्स वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्मेट्स हम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हमें पता है कि भाई यहाँ करंट एसेट का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, या फिर जो भी अनदर जो भी चीजें हैं। ऑल दो इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए और भी बहुत सारी मतलब जैसे एसेट्स में क्या क्या आइटम्स आनी है, करंट एसेट में क्या आना है, बैंक एंड बैंक बैलेंसेज में क्या आना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाना है, उन सब के लिए गाइडेंस नोट में सब कुछ लिखा हुआ है। बट वी आर कवरिंग द वास्ट टर्म कि भाई ये मैंडेटरी है नहीं। सबसे पहला सवाल, ये मैंडेटरी है या नहीं? पीपल आर सेइंग दिस इज मैंडेटरी। नाउ एक चीज बताइए मेरे को, गाइडेंस नोट इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट की। तो अरुण सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्लाइंट जो है वो उस गाइडेंस नोट को क्यों मानेगा सर? मतलब वो क्यों माने इस गाइडेंस नोट को? क्योंकि गाइडेंस नोट इशू किया गया है, गवर्नमेंट ने नहीं किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने किया। और सीए इंस्टीट्यूट जो चीज इशू करता है उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट पर, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मतलब ये क्या चल रहा है? मैं आपको गाइडेंस नोट दिखाता हूं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये गाइडेंस नोट का वो पार्ट है जहां पर लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड रिकमेंडिंग द फॉर्मेट। रिकमेंडिंग वर्ड को मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है। सर मैंडेटरी कहां है जब इसमें रिकमेंडिंग लिखा हुआ है? अब बात यह है तो फिर मैंडेटरी का क्या मतलब है? मैंडेटरी का तो साहब मैंडेटरी का मतलब क्या है? मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग मैं आप बात आता हूं मैंडेटरी। अब मैंडेटरी का मतलब क्या है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट है वो बनाने तो इसी फॉर्मेट में है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाने तो इसी फॉर्मेट में है, मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब इन केस अगर क्लाइंट ने नए फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाकर दिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स में कोई बदलाव कर सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर है? चौथा सवाल, साहब ओपिनियन के ऊपर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला? एंड पांचवा सवाल ये कि इसमें अगर कोई लाइन आइटम एड लेस करना है या मेरे को कुछ एडिशनल रिपोर्ट करना है जो इन्फॉर्मेशन इस डिस्क्लोजर के अलावा क्लाइंट को करना है मान लीजिए, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी रिपोर्ट के प्रोस्पेक्ट से करना है, तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता? या फिर हम बाउंडेबल है इन फॉर्मेट्स के ऊपर, या फिर हमारा क्लाइंट बाउंडेबल है इन फॉर्मेट्स के ऊपर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सब चीजें हम मेरे सेशन में डिस्कस करने वाले। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट ये 5 सवाल मुझे आपको बताने जरूरी थे, क्योंकि आप सब लोग ये सब जान रहे होंगे कि
सब यही कह रहे हैं कि फॉर्मेट्स आर मैंडेटरी। सब फॉर्मेट मैंडेटरी क्यों? क्योंकि गाइडेंस नोट जो है वो क्लाइंट पर तो अप्लीकेबल नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं इशू किया है कि क्लाइंट के ऊपर अप्लीकेबल हो जाए, सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किया तो सीए पर अप्लीकेबल है, तो सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन जनरेट करने की है। तो ओपिनियन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो मैं शुरू करता हूं। आई होप आपको मेरे इस सेशन की थीम समझ आ गई होगी, क्योंकि बेसिकली क्या करंट एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, वो समझाना मेरा यहाँ पर काम भी नहीं है, और हम सब लोग इतने मैच्योर है कि वो सब चीजें हमें पता भी है। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि क्या होता था, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट टी फॉर्मेट में बना करते थे। टी फॉर्मेट में बना करते थे तो कोई अपनी मर्जी से कोई आइटम ऐड कर देता था, कोई हटा देता था, कोई उसमें कुछ नाम चेंज कर देता था, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था साहब। तो उस फॉर्मेट को लाने के लिए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू करा कि भाई एक स्टैंडर्डाइजेशन हो चीजों का, चीजें एक जैसी दिखे। अगर कोई इन्वेस्टर है, मान लीजिए इन्वेस्टर छोड़िए, मैं कहता हूँ बैंक से लोन लेने जाते हैं, एक बैलेंस शीट आती है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, एक में कुछ और लिखा हुआ है, आइटम के नाम ही बदल दिए जाते हैं सब। तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं क्लेरिफाई करना, उन सब चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए गाइडेंस नोट लाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर अगर आप लोगों को पता हो तो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन देनी मैंडेटरी है नए फॉर्मेट के अंदर, कि भाई पिछले साल क्या था, अब क्या हुआ। समटाइम्स क्या होता है, प्रोजेक्शंस के बेसिस पर लोन ले लिए जाते हैं, प्रोजेक्शंस के बेसिस पर लोन ले लिए जाते हैं, पास्ट में कुछ हिस्ट्री थी नहीं, ठीक है, और प्रोजेक्शन के बेसिस पे लोन ले लिया। करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने बूम दिखाया क्योंकि सेल हुई थी। अरे पहले क्या था वो भी तो बैंकर को पता होना चाहिए, ठीक है। और इस गाइडेंस नोट की जरूरत क्यों पड़ी? स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, इंफॉर्मेशन का गैप होता था। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोई अपनी मर्जी से छुपा लेता था, क्योंकि स्टैंडर्ड तो कुछ है नहीं। नोट्स में एक नोट डाला, एक डिस्क्लोजर डाला, नहीं डाला साहब, सीए ने भी साइन कर दिया और हो गया काम। उसके आगे क्या? बैंकर को भी, स्टेक होल्डर और भी बहुत सारे हैं, उन सबको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्डाइज करना है, इंफॉर्मेशन के गैप को फुलफिल करने के लिए ये जो गाइडेंस नोट है वो लाया गया, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन, जैसा मैंने पहले बताया, अपनी मर्जी से चल रहा था सब, टी फॉर्मेट में बनाना है, इनकंसिस्टेंसी मतलब ठीक है चल रहा है, बना दिया, साइन हो गया, दैट्स इट, वो सब चीजें थी। इंस्टीट्यूट कहता है नहीं साहब ऐसा नहीं चलेगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप साइन कर रहे हो पेपर, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड, कुछ इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, एंड होनी भी चाहिए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम साइन कर रहे हैं पेपर्स को, ठीक है। एंड द लास्ट इज नो कंपेरेटिव डेटा। पहले कोई कंपेरेटिव डेटा नहीं हुआ करता था, अब कंपेरेटिव डेटा देना मैंडेटरी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फिर वर्ड यूज कर लिया साहब, मैंडेटरी। मैंडेटरी किसके लिए? क्लाइंट के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है उसके लिए। आगे आऊंगा, मैं बताऊंगा कि अगर नहीं बने उस फॉर्मेट में तो क्या करना है। प्रपोज एंड इफेक्टिव डेट, जैसे अरुण सर ने सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये मैंडेटरी हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर गया है 31 मार्च 2025, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं वो नए फॉर्मेट्स के अंदर ही बनने हैं। अगर आपका क्लाइंट नहीं बनाता है तो वो गलती कर रहा है कहीं ना कहीं, टी फॉर्मेट में नहीं बनने हैं, प्रॉपर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं कवर करी है कि कौन कौन से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, हम सबको पता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब क्या है, तो मैं उन बेसिक बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में नहीं जा रहा हूँ। बट ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बोलूं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में यहाँ पर एलएलपी को नहीं कवर किया गया है साहब, ठीक है। पार्टनरशिप हम यहाँ पर कवर है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। फिर आते हैं एंटिटी क्लासिफिकेशन लेवल, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। एंटिटी का 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया। अब ये क्या हुआ था कि जब ये गाइडेंस नोट बन रहा था, ठीक है, पहले इसका टेक्निकल ड्राफ्ट आया, फिर ये फाइनल रिकमेंड हुआ, ठीक है। तो अब क्या, उस टाइम क्या हुआ साहब कि एमएसएमई की डेफिनेशन कुछ और थी, उसके बाद बजट आ गया, अब एमएसएमई की डेफिनेशन भी बदल चुकी है। बट इस गाइडेंस नोट में जो एमएसएमई के बेसिस पर ना 4 लेवल पर एंटिटीज को मैं बोलूं तो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेवल 1 जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर और या फिर पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर। सेकंड लेवल 2 जिसकी पब्लिक बोरोइंग 10 से 50 करोड़ के बीच में और टर्नओवर 50 से 250 करोड़ के बीच में सब। लेवल 3 जिसकी टर्नओवर 10 से 50 और पब्लिक बोरोइंग 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। और लेवल 4 जो ऊपर तीनों में कवर नहीं हुआ साहब। अब इस लेवल को यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया मैं बताता हूँ। लेवल 1 पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है, ठीक है। लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर कुछ यहाँ पर छूट दी गई है, कुछ एग्जेम्पशंस है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस लेवल वाले को अगर कंप्लाई ना करे तो चलता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस वाले के लिए मैंडेटरीली है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एंटिटीज को मैं बोलूं कि लेवल्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है मैं बड़ा ही जल्दी से मैं बोलूं तो समअप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बस जो डाउट्स हैं, जो भ्रांतियां हैं उसको क्लियर करना मेरा यहाँ पर टारगेट है। तो कुछ डिस्क्लोजर्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा।
एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एमएसएमई क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटस। भाई साहब, आप इस गाइडेंस नोट की लेवल ऑफ एंटिटी के हिसाब से कौन से लेवल पर हो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपने अपने नोट्स टू अकाउंट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी भी करी होगी। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, लेवल ट्रांजिशन। लेवल ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आप पहले बड़ी एंटिटी थे, लेवल 1 थे, फिर लेवल 2 में आए, फिर लेवल 3 में आए, या लेवल 3 से लेवल 2 पे गए, कुछ भी हो सकता है, आप डाउनग्रेड भी हो सकते हैं, अपग्रेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लेवल ट्रांजिशन आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है वो लेवल जो है वो सेकंड से फर्स्ट हुआ है, सेकंड से थर्ड हुआ है, या थर्ड से फोर्थ हुआ है, फोर्थ से 3 हुआ है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सब हम फॉर्मेट्स तो देख रहे हैं, बट उसके अंदर डिस्क्लोजर क्या है हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी कह रहा हूं हम लोग नहीं देख रहे हैं, और वो देखना जरूरी है। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूं थर्ड पॉइंट, हमारा एग्जम्पशन क्वालिफिकेशन। एग्जम्पशन क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आप फोर्थ लेवल की एंटिटी है। मैं फोर्थ लेवल की एंटिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फोर्थ लेवल की एंटिटी पर बहुत सारे एएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। मान लीजिए आप फोर्थ लेवल की एंटिटी है और आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आपने एग्जम्पशन जो है वो बेसिकली मैं बोलूं एग्जम्पशन अवेल करी है नहीं करी। यहां पर ये पॉइंट ये कहता है कि एंटिटी जो फर्स्ट से स्लिप हो रही है, सेकंड थर्ड या फोर्थ लेवल पर आ रही है, उनको 2 साल तक लेवल 1 के डिस्क्लोजर फॉलो करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, लेवल 1 से स्लिप होने वाली एंटिटी को 2 साल तक, अगले 2 साल तक फॉलो करने पड़ेंगे डिस्क्लोजर्स लेवल 1 वाले ही, क्योंकि आप बड़ी एंटिटी से धीरे धीरे स्लिप होकर छोटी एंटिटी की तरफ आ रहे हो। ठीक है, एंड नॉन अवेलमेंट ऑफ एग्जम्पशन। मान लीजिए साहब मैं लेवल 4 की एंटिटी हूं और कोई एक पर्टिकुलर एएस, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के एएस की। ठीक है, वो कहता है साहब आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के जो डिस्क्लोजर जो है वो आपको देना है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ये रिलेटेड पार्टी का जो एएस है वो अप्लीकेबल है लेवल 1 और लेवल 2 की एंटिटी पर, लेवल 3 और लेवल 4 पर नहीं है। फिर भी अगर आप मान लीजिए ये एग्जम्पशन अवेल ना करते हुए डिस्क्लोजर दे रहे हैं, तो आप बताइए कि भाई मैंने ये एग्जम्पशन नहीं ली है। ठीक है, आप डेफिनेट कीजिए, उसमें डिफाइन कीजिए कि भाई आपने ये लेवल की एग्जम्पशन ये पर्टिकुलर एएस को लेकर नहीं ली है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। हम लोग सिर्फ फॉर्मेट्स पर, सिर्फ वो जो फॉर्मेट है लंबा चौड़ा या फिगर्स पर ध्यान दे रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा वाइडर कोई वो नहीं है, यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है अगर मैं बोलूं? एडजस्टमेंट एंड टर्मिनोलॉजी। बेसिकली क्या है, आप अपने हिसाब से चीजों को, यहाँ पर थोड़ी लीनियंसी रखी गई है, बोला गया आप अपने चीजों के हिसाब से चेंज कर दो, क्योंकि फॉर्मेट एक फॉर्मेट दिया गया। हाँ, यहाँ पर एक चीज में ध्यान रखना बताना चाहूंगा आपको, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो 2 फॉर्मेट, या मैं बात करूं 3 फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए। एक वही फॉर्मेट जो आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग फॉर्मेट दिया गया है साहब। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर वो फॉर्मेट नहीं लगेगा जो आप फॉलो करें, इंस्टीट्यूट की साइट पर अवेलेबल है। नॉन प्रॉफिट का स्पेशली उसमें कुछ फंड्स के वर्डिंग को लेकर चेंज किया गया। एंड थर्ड वन, एलएलपी को यहाँ पर कवर नहीं किया गया, इसलिए एलएलपी के लिए अलग फॉर्मेट दिया गया। एलएलपी को इसमें इस गाइडेंस नोट में कवर नहीं किया गया, तो उसके लिए अलग गाइडेंस नोट इशू किया गया, अलग फॉर्मेट इशू किए गए। ठीक है, तो बात ये आती है कि यहाँ पर आप टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए आप वो फॉर्मेट में कैपिटल वर्ड है, बट आप एओपी है या बीओआई है, तो आप मेंबर्स फंड वर्ड हो गया, या मान लीजिए कॉर्पस फंड तो मैं नहीं बोलूंगा, मेंबर्स फंड बोल सकता हूँ। ठीक है, आप मेंबर्स फंड यूज कर लो, मतलब जो आपकी एंटिटी के नेचर को सूट कर रहा हो। ठीक है, और गाइडेंस नोट को वॉयलेट ना करे, आप वो चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये लीनियंसी दी गई है। अगली बात मैं करूं, supplementary disclosure in the format are supplementary to ICAI accounting standard. Additional disclosure should be in note to accounts और एज एडिशनल स्टेटमेंट। मतलब कि आपको वही जो मैंने बोला कि एग्जम्पशन अगर आपने नहीं ली तो बताओ साहब कि आपने नहीं लिए, तो वही अगर आप एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहो, यहाँ पूरी लीनियंसी आप दे सकते हो, आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है? प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेटली आप प्रोवाइड कर सकते हो, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंक्लूड नैरेटिव डिस्क्रिप्शन एंड डिसएग्रीशन ऑफ रिकॉग्नाइज आइटम। मान लीजिए कोई डिसएग्रीशन होता है, या फिर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर चीज को और डिस्क्राइब करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। क्लोज रेफरेंस ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम
इन रिलेटेड नोट। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये चीज बात करता है प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स की जो फिगर है उस पर क्लोज रिलेशन, एक तरह से कंपेरेटिव। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिटेल एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। भाई जो नेसेसरी है वो आप दो, जो नेसेसरी नहीं है आपको नहीं लगता नहीं देनी, ठीक है, बट जिससे ओपिनियन हिट होता हो, जिससे डिसीजन हिट होता हो, या लोन का हो, इन्वेस्टर का हो, बैंकर का हो, किसी भी चीज का, ठीक है, वो आपको डिस्क्लोज करना यहाँ पर जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, वन मोर थिंग, आपको यहां पर एंटिटी की इंफॉर्मेशन, एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, एलएलपी गाइडेंस। बेसिकली एलएलपी के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि अलग से गाइडेंस नोट दिया गया। ठीक है, वो गाइडेंस नोट भी अवेलेबल है साइट पर, आप जाकर इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलएलपी के जो सेपरेट गाइडेंस नोट दिया गया उसके अंदर क्या कोई चेंजेस है। बहुत माइनर चेंजेस है जो हम फॉर्मेट अब फॉलो कर रहे हैं। जो एलएलपी के जो फॉर्मेट्स, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फाइनेंशियल्स हैं और एलएलपी के जो फॉर्मेट्स दिए गए, बहुत माइनर सा चेंज है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है साहब? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका क्लाइंट, जो मेरा पहला सवाल था, अगर आपका क्लाइंट पुराने फॉर्मेट में डेटा बना के देता है, पुराने फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना के देता है, मान लीजिए पुराने फॉर्मेट में बैलेंस शीट के बाद भी उसने डिस्क्लोजर सारे दे दिए, नोट सारे दे दिए, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग, आप ये देखिए क्या उससे आपका ओपिनियन हिट होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज देखिएगा गाइडेंस नोट अप्लीकेबल है मेंबर्स पर। ठीक है, अगर मेंबर्स गाइडेंस नोट को वॉयलेट करते हुए साइन कर देते हैं सब कुछ सही करके, साहब तो ये मिसकंडक्ट हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एथिक्स है उसमें लिखा है कि इंस्टीट्यूट द्वारा इशूड गाइडेंस नोट को एक सीए जरूर फॉलो करेगा, नॉर्मल बंदा करे या ना करे। ठीक है, तो हमें इस चीज का पक्का पक्का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका ओपिनियन हिट हो रहा है क्या। इन केस ओपिनियन हिट नहीं हो रहा तो आप अपने टैक्स रिपोर्ट में लिख दीजिए कि भाई ये प्रिपरेशन जो है पुराने फॉर्मेट्स में करी गई है क्लाइंट की, आपकी जिम्मेदारी अकाउंट प्रिपेयर करना नहीं है, तो आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, आप एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, आप प्रोफेशनल जजमेंट लगाइए कि यहाँ पर मेरा ओपिनियन हिट होता है क्या। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन छुपा दी गई, उस इंफॉर्मेशन की वजह से आपका जो ओपिनियन है, आपका जो जजमेंट है वो चेंज हो जाता, तो आप डेफिनेटली अपने ओपिनियन पर इसका इंपैक्ट डालने वाले हैं। अच्छा, अब आता है कि क्या कोई लाइन आइटम ऐड की जा सकती है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पड़े हैं, जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो पड़े हैं मेरे पास, मैं उसमें बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि एक लाइन आइटम यहाँ पर ऐड करनी चाहिए लाइन। तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस यू कैन, आप लाइंस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक लाइन आइटम में प्रीवियस ईयर में फिगर नहीं है, करंट फाइनेंशियल ईयर में फिगर नहीं है, क्या मैं वो आइटम हटा सकता हूँ? यस यू कैन डिलीट ऑल्सो। तो आप कोई भी रो हटा सकते हैं, नील बैलेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप हटा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एफएक्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं पहले बात करता हूँ कौन कौन से एएस अप्लीकेबल है या नहीं, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि मैंने लेवल में बात करी थी कि ये लेवल जो है वो इम्पेक्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो साहब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से अकाउंटिंग, लेवल 1 पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है, पहली बात आप क्लियर कर लीजिए। लेवल 4 सबसे छोटी एंटिटी है तो उसको सबसे ज्यादा रिलीफ दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 2, 3 और 4, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अप्लीकेबल है या नहीं ये बोलना मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्क्लोजर जहां पर लिमिटेड डिस्क्लोजर देने हैं, या मान लीजिए डिस्क्लोजर की एग्जाम्पशन है, खाली फिगरें बतानी है, तो वो सारी चीजें जो है लिखी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट या फोटो खींच सकते हैं। आई होप आपने पिक्चर ले ली होगी, बाकी अदरवाइज मानसी जी या फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से आपको जब सर्टिफिकेट आएगा तो ये साथ में मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट्स तो सबके पास है, इंस्टीट्यूट की साइट पर अवेलेबल है। एक सेकंड दीजिएगा।
सो व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस गाइडेंस नोट, हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करना कहीं ना कहीं, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिलेशन करना, रिलायबिलिटी, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए। तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विच टाइप ऑफ एंटिटीज आर कंसिडर्ड एज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, साहब एलएलपी यहाँ पर कवर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर कंपनीज कवर नहीं है, ठीक है, बाकी यहाँ पर सारे कवर है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी और लॉ के अंदर कोई फॉर्मेट पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए अगर कोई और लॉ के अंदर, मान लीजिए महाराष्ट्र टैक्स एक्ट जो है, वो एक अलग से फॉर्मेट जो है वो इशू करता है कि भाई आपको महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ये फॉर्मेट यूज करना है, तो साहब आपको इन फॉर्मेट्स जो अब हम फॉर्मेट्स डिस्कस कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आपको उसी एक्ट के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो कहीं और प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जिस फॉर्मेट में बना रहे थे, जो कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको उसी फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एलएलपी के लिए अलग से फॉर्मेट दे दिए गए। तो यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब क्या हो गया, कॉर्पोरेट यानी कंपनी, और एलएलपी जो है वो यहाँ पर कवर नहीं की, बाकी सारी टाइप की एंटिटीज यहाँ पर कवर है। थर्ड, हाउ डज द गाइडेंस नोट रिलेट टू द प्रीवियस इश्यूज टेक्निकल गाइड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। बेसिकली ये फॉर्मेट रिकमेंड किए गए हैं, यही चेंजेस है, ठीक है, रिकमेंडेड है, ठीक है, क्योंकि सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अगेन कह रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है। और अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो एज पर एथिक्स और एज पर इंडिपेंडेंस मैं बोलूं तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये क्लाइंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सीए के ऊपर अप्लीकेबल, और सीए की जिम्मेदारी ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो ओपिनियन में इसका इंपैक्ट हम जरूर डालने वाले हैं। What are the auditor's responsibility in non-corporate entities client fall to comply with the presentation format in the guidance note? वही चीज ICAI ने रिकमेंड करा है, client does not furnish the financial statement in the prescribed format, then the auditor is obliged to disclose the non-compliance। मैंने पहले बताया आपको ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिससे आपकी जिम्मेदारी जो है वो छट जाए कि भाई मैंने चेक करने की कोशिश करी थी, मेरी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, क्लाइंट की है, क्लाइंट ने नहीं बनाया है, मैंने पुराने वालों फॉर्मेट को ही ऑडिट करा है। तो आप डिस्क्लोज जरूर कीजिएगा, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ गाइडेंस नोट है, और सीए के ऊपर वायलेशन ऑफ गाइडेंस नोट प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर रेट होता है, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/24 आर कंपैरेटिव फिगर्स फ्रॉम द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द न्यू फॉर्मेट। यस, पिछले साल की फॉर्मेट्स, पिछले साल की फिगर्स जो है आपको बतानी पड़ेगी। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट और जस्ट वो चीजें इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं जो हम इग्नोर कर रहे हैं या जो हम इग्नोर कर सकते हैं। कैन लाइन आइटम विद नील बैलेंस कैन बी एड और लेस, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फाइनेंशियल बनाते टाइम अब ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने अपनी बुक में डाल रखा है। ये बुक बेसिकली फिया की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहे तो उसको वहां से परचेज कर सकते हैं। इसमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को लेकर सारी चीजें मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी। अच्छा, ये चीज देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन आपको मैंडेटरी ऐसा बताना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे हम कंपनीज में डिस्क्लोज करते थे प्रॉपरली, जो पॉलिसीज या जो नोट्स टू अकाउंट्स के आइटम्स यहाँ पर आने चाहिए, जो कि आपके लेवल ऑफ एंटिटी के हिसाब से मैंडेटरी हैं, एएस के हिसाब से, तो साहब आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर की बात कर रहा था। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर जो लेवल 1 और लेवल 2 पर एप्लीकेबल है, लेवल 3 लेवल 4 पर नहीं है। बट स्टिल अगर आप डिस्क्लोज करें तो आप बताइए कि भाई हमने जो है ये एग्जम्पशन नहीं ली है, ठीक है। और बाकी अच्छा, वन मोर थिंग, एक एडिशनल डिस्क्लोजर भी है, वो मैं आपको बता देता हूं। एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है बेसिकली, यस दिस इज, ये डिस्क्लोजर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि ये डिस्क्लोजर डाला है या नहीं। फर्म इज रजिस्टर्ड एज एमएसएमई अंडर दिस, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो, नहीं है तो लिखेंगे नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। एंड फर्म स्टेटस क्या है 31 मार्च 2000 जब भी आप कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, जरूरी है ये, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर आपको डालना है कि फर्म रजिस्टर्ड है, फर्म का स्टेटस जब आप ऑडिट कर रहे हैं उस दिन का, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का ये है। फर्म इज कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय आईसीएआई फॉर लेवल, किस लेवल की एंटिटी हैं आप, ये आपको बताना है, और आपने वो सारे एएस फॉलो करें। अब देखिएगा, अगर इन केस क्लाइंट जो है किसी एक एएस या किसी एक एएस की कंप्लायंस नहीं करता है,
ठीक है, तो वो यहाँ पर ये नोट्स जो है, ये नोट जो है वो नहीं डाल पाएगा। ठीक है, और ये डिस्क्लोजर डालना जरूरी है, तो आप इसके बेसिस पर आप अपनी रिपोर्ट पर इंपैक्ट डालिए। ठीक है, फर्म इज इमीडिएट प्रीवियस ईयर में एमएसएमई का क्या स्टेटस था आपका, एंड फर्म वाज कवर्ड अंडर कौन से लेवल में पिछले साल थी। तो यहाँ पर भी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं मैं बोलूं की गई है। तो मैं इन शॉर्ट ये सेशन जो है वो यहाँ पर एंड करना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज मेरा काम यहाँ पर ये था कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं नए फॉर्मेट में, उनमें क्या क्या भ्रांतियां हैं। होप मैंने क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। बाकी स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माइक इज ओपन फॉर ऑल। Thank you, Uttamji, for this insightful session for our participants. However, there are some questions from our participants. First, Arunji wanted to ask that if last year figures are mandatory, then comparative figures are also mandatory for the preparation of financials. बेसिकली इस साल की फिगर जब 24-25 की फिगर आने वाली है तो आपको 24 की फिगर मैंडेटरी है। मतलब 31 मार्च 24 की फिगर्स आपको डालनी ही डालनी पड़ेगी इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो फिर तो कंपैरेटिव बन ही गया। हाँ बिल्कुल, कंपेरेटिव इस साल बनाना है सर अपने को। तो फिर तो मैंडेटरी हो गया। बिल्कुल 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 सर, मैंडेटरी हो गया सर। वही बात आ गई ना, मैंडेटरी किसके हाँ लिए हो गया। ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि किसके लिए, हाँ। ऑडिटर के लिए या क्लाइंट के लिए। तो फिर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्लाइंट को बोलेंगे ना, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू बिल्कुल सर। सर प्रिपेयर। इसमें अब प्रैक्टिकल अगर मैं बोलूं सर, ये सेशन ऑल रिकॉर्ड हो रहा है, बट प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आने वाली है सर, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो हम बनाते हैं, ऑडिट नहीं भी कर रहे, क्लाइंट उतना पैसा नहीं देने वाला। ये दिक्कत आने वाली है। वो कहेगा साहब आप कर रहे हो, करो इतने साल से। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, अगर हम अपने नोट्स में लिखेंगे कि इन्होंने कंपैरेटिव फिगर नहीं दिया तो फिर सर। वो भी वॉयलेशन ऑफ गाइडेंस नोट है, और हमें इसका इम्पैक्ट वही सर, एडिशनल जजमेंट है हमारी, कि हमें जजमेंट के ऊपर ये एक तो डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो एक तरह से उसकी वजह से ओपिनियन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्वालिफिकेशन हो गया ना, लाइक डेफिनेट सर, हैज नॉट प्रिपेयर्ड कंपैरेटिव फिगर बट बिल्कुल उसको बनाना था तो बिल्कुल क्वालिफिकेशन हो गया। बिल्कुल तो सर। इट्स इसमें वो बेटर। जो एडिशनल डिस्क्लोजर बताया ना सबसे लास्ट में, वो भी देखिएगा, वो मिस कर रहे हैं हम सब। ये डिस्क्लोजर आपने अच्छा बताया, 11 1 2 3 4। ये जरूरी है सर, गाइडेंस नोट पूरे किसी ने पढ़ा ही नहीं। एमएसएमई डिस्क्लोजर भी अच्छा बताया, बट फिर भी क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए कि इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू प्रिपेयर। बिल्कुल सर, जरूरी है ये, क्लाइंट हाँ के लिए जरूरी है सर। अगर नहीं आया तो वही हाँ ओपिनियन पर बात आ जाएगी हाँ। जी। सर एक क्वेश्चन और है निशांत कुमार से, whether there is any specific format of audit report for non-corporate entities? नहीं सर, यहाँ पर बेसिकली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की ऑडिट एक टैक्स ऑडिट में ही होती है मेरे हिसाब से, या फिर मान लीजिए सोसाइटी या ट्रस्ट एक्ट में होती है। ठीक है, तो उन सब में जैसे मान लीजिए पर्टिकुलरली सोसाइटी या ट्रस्ट की बात करूं, इंडिविजुअल की तो ऑडिट टैक्स ऑडिट के अलावा कहीं और होती नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप की कहीं होती नहीं। ठीक है, सोसाइटी और ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं सर, तो उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट हमें बनानी है। अब बनाते टाइम क्या करना है, बेसिकली हमें जो नॉर्मल हम कंपनीज के लिए ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करते हैं ना सर, उसी तरीके से बनानी है कि भी बेसिस ऑफ ओपिनियन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैरा जिस फॉर्म में आ रहे थे ना, उस फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। Okay. कोशिश ये रहे कि भाई हम उस फॉर्मेट में बनाएं, बस ये चीज ध्यान रखने वाली है। Okay. A question here, as you have said in the beginning that the preparation of financial statements is the responsibility of management, then the notes to accounts is also his responsibility. Then how CA will change disclose in notes to accounts? Basically, he wanted to ask whether on free CB or separate audit report, all these things should be reported or not. बेसिकली आपने सही बोला। मैं आई नो द नेम, किसने क्वेश्चन पूछा है, ताकि मैं उनको एड्रेस कर पाऊँ। MS करके है। ओके, सो बेसिकली क्या है, यू आर राइट कि नोट्स टू अकाउंट्स बनाना भी क्लाइंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर राइट। बट ओपिनियन देना या 3C, अब आप देखिएगा साहब 3CB और 3CA दो फॉर्म है। 3CB किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी क्लाइंट की है। 3CA हमारी है, जो जहां पे क्वालिफिकेशन आती है ना, जहां पे हमारे साइन होते हैं, सिर्फ वो एक पेज ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब। तो वहां पर हम डाल सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स नॉट कंप्लाइंग विद ICAI गाइडेंस नोट। ठीक है, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज नहीं कर सकते, बट जैसे अरुण सर ने बोला कि हम क्लाइंट को बोलें कि साहब ये जरूरी है बनाना, आप बनाओ, अदरवाइज इसका इंपैक्ट हम अपने ओपिनियन पर, हम अपनी रिपोर्ट पर डालेंगे। ठीक है, और 3CA के अंदर इसका इंपैक्ट डेफिनेटली डाला जाएगा।
So there's a network issue in your Please, area. please repeat Anto. Okay. Now I'm audible? Yes. Yes, yes, yes. मैं कह रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ही इज राइट कि नोट्स टू अकाउंट्स बनाना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट की. इट इज ओके. बट जैसा अरुण सर ने बोला कि हम अपने क्लाइंट को बताएं कि साहब ये बनाना अब से जरूरी है. पहले तक आप जो कर रहे थे करते रहो, हमें पहले हमने कुछ नहीं बोला, बट अब ये जरूरी है, हम साइन नहीं कर पाएंगे. और फिर भी वो कहता है साहब आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा. डेफिनेट क्वेश्चन आता है, छोटे क्लाइंट्स को लेकर आता है, साहब आप नहीं करोगे तो हम करेंगे. बिल्कुल हम भी करेंगे. हम करेंगे विद क्वालिफिकेशन इन 3CA. ठीक है, तो हमें 3CB 3CD 3CA 3CD. ठीक है, तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है ना साहब, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी वो हमारा पार्ट है. बाकी पार्ट भरना भी क्लाइंट की जिम्मेदारी है, जहां पर वो अनेक्जर लगते हैं. हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट देना है. ठीक है. Next question is from Pradeep Kumar Yadav. सर सीए, अगर कोई सीए जिसकी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस सीए के थ्रू उस एंटिटी में मैंडेटरी होगा या कोई सीए इन्वॉल्व हो? नहीं, जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो साहब, तो आप तो फिर मैनेजमेंट का पार्ट बन गए. आप इंडिपेंडेंट, आप और उसकी ऑडिट साइन नहीं कर सकते. तो आप तो एज सीए हो और किसी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो, तो साहब ये तो बढ़िया है ना. आप ये बोलो क्लाइंट को कि भाई सर अब ये नए फॉर्मेट है तो हम अपनी बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनाएंगे. बट शायद प्रदीप जी पूछना चाहते हैं मैं एज ए सीए वहां काम कर रहा हूं, मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मेरे ऊपर अप्लीकेबल है या नहीं? साहब नहीं है, ये क्लाइंट की जिम्मेदारी है. आप क्लाइंट के अकाउंटेंट हो, आपका बॉस ये बोल दे, लाला है साहब, लाला साहब है, वो बोल दे नहीं मेरे को तो पुराने ही बनाने हैं प्रदीप भाई, वो बोल दे प्रदीप पुराने बना, तेरे को तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, सीए इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे साहब? आप वहां पर क्लाइंट के अकाउंटेंट हो खाली. तो जो मालिक बोल रहा है वो करना पड़ेगा, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की आ जाएगी कि वो उस चीज को मानता है या नहीं. ठीक है. होप Next question. ये आंसर समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो आप मतलब मैं और क्लेरिफाई कर सकता हूँ. बेटर है बना ही लो कंपैरेटिव. क्या सर? बेटर है. सर वॉइस डिस्टर्ब हो रही थी. मैं बोल रहा हूँ बेटर है न्यू फॉर्मेट में बना लो. बेटर, बिल्कुल सर, बेटर है कि न्यू फॉर्मेट में बनाओ. और अपने क्लाइंट्स को बोलो कि सर न्यू फॉर्मेट बनाना जरूरी है. इवन छोटे छोटे डिस्क्लोजर, सर छोटे छोटे डिस्क्लोजर जरूरी है. हमने फॉर्मेट सब ने देख लिए, अरुण अरुण सर, फॉर्मेट सब ने देख लिए, डिस्क्लोजर किसी ने नहीं देखे. इवन मैं बोलूं छोटी छोटी चीजें हैं पूरे गाइडेंस नोट के अंदर, छोटी छोटी चीजें जो इग्नोर कर दी गई. सर फॉर्मेट, मैंने एक बैलेंस शीट साइन करी थी, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ. एक बैलेंस शीट साइन कर दी, सीए साहब थे उस बैलेंस शीट को देखने वाले सामने, क्लाइंट भी, तो कहते हैं साहब आपने जो बैलेंस शीट साइन करी है ना वो नए फॉर्मेट में नहीं है, सॉरी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, आपने तो ये चीज हटा दी. अरे साहब वो चीज हटा दी क्योंकि दोनों सालों की फिक्रों में वो जीरो था. क्योंकि लिखा हुआ है गाइडेंस नोट में कि मैं हटा सकता हूं, मेरे क्लाइंट ने हटा दी, मैंने साइन कर दी, क्या बुराई है उसमें? तो आपको बेसिकली बेटर इंफॉर्मेशन देने के लिए गाइडेंस नोट लाया गया है, कोई बाउंड्री नहीं बना रही है. ये बेटर इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी और इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी के लिए गाइडेंस नोट लाया गया है. Okay, there's a next question from Hari Shankar Kumar. If client is not registered with MSME, then also need to put additional reporting. एडिशनल डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं आई थिंक, तो डेफिनेट आप वहां पर ये लिखिए कि भाई आपका जो क्लाइंट है वो एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है. ठीक है, और वो इस लेवल में फॉल होता है. लेवल तो डिफाइन कर सकते हो आप टर्नओवर के बेसिस पर, बट एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है. ठीक है. Okay, there's one more question from Prateek Mittal. He wanted to ask, depreciation chart can be prepared as per old format or we have to mandatory prepare as per new format? Because it's very difficult to provide opening balances of all assets and accumulated depreciation. नहीं साहब, सारा कुछ नया कर रहे हो तो सारा कुछ नया करो. ये पुराना कुछ भी मतलब छोटा सा वो क्या है ना, बिल छेद है, वो छेद के लिए हम यहाँ पर हमसील मत लगाओ. ये चीज अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट में बोलूं, आप अपनी रिपोर्ट में जो क्वालिफिकेशन का पॉइंट है ना, अदर क्वालिफिकेशन में लिख दो कि भाई ये चीजों को छोड़कर, इस चीज को छोड़कर सब कुछ सही है. या ये चीज जो है वो पुराने के हिसाब से क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. Okay, so the questions have been ended. These were the questions which have been asked by our participants. If anybody has doubts or want a deep understanding, you can refer book prepared by our author, C.A. Uttam Modi. The book will be available on FIA website, so you can purchase them and refer the books. So you will be having a or clarity on the
guidance notes or issued by our ICI. So yeah, now I wanted to hand over this session to our facilitator. He will be addressing this session, CA Arunji. Now he will be addressing and giving vote of thanks to our participants. Over to you, Arunji. Thank you to all speakers, participants, moderators. आज के सेशन में क्या हुआ, कंसेप्ट भी क्लियर हुए और प्रैक्टिकली भी कैसे अप्लाई करना उनको वो भी क्लियर हुए। और जो स्पीकर थे हमारे दोनों ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा और कंसेप्ट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करे। जैसे डेफर टेक्स्ट में इमोजी वाला था कि अगर अगले साल में इमोजी सैड है तो आपको बनाना है डेफर टेक्स्ट लायबिलिटी, एकदम सिंपल कर दिया उन्होंने। अगले साल में इमोजी अगर खुश है तो आपको डेफर टेक्स्ट एसेट बनाना है, एकदम सिंपल हो गया कंसेप्ट। वैसे ही उत्तम ने भी बड़े अच्छे से बताया। ये डिस्क्लोजर वाली बात कोई ध्यान में नहीं देता है कि इतने डिस्क्लोजर देने चाहिए क्या, लेवल देना चाहिए क्या। और सेकेंडली कि अगर प्रिपेयर नहीं करे हैं सामने वाले क्लाइंट ने तो आपको क्वालिफिकेशन देना है। तो सारे कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हुए और मेरे ख्याल से सभी के लिए नॉलेजेबल था और मतलब प्रैक्टिकली भी काफी यूजफुल रहेगा ये सेशन। तो थैंक यू वेरी मच सारे पार्टिसिपेंट्स को भी, स्पीकर्स को भी, मॉडरेटर्स को भी। और फिया का भी जो नेक्स्ट सेशन है वो टैक्स ऑडिट्स पर और इनकम टैक्स की रिटर्न्स में जो चेंजेस आए हैं उस पर होने वाला है। तो मे बी नेक्स्ट सैटरडे को होगा, तो आप फिया की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये www.fia.in FIEA.in, तो उस पे जाके आप चेक कर सकते हो। आई एम श्योर वो भी काफी नॉलेजेबल होगा। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir, for having us here. या Thank you, sir.